The PPT is visible to everyone. Yes, sir, it's visible. तो विकास जी कैन वी स्टार्ट या अभी तो कोई भी नहीं दिख रहा मुझे या 5 मिनट रुक जाऊं अभी 2-3 मिनट Yes, है sir, अभी तो you can wait for 2 to 5 minutes, sir. ओके सर क्लास स्टार्ट करें। हाँ जी वी कैन स्टार्ट बिकॉज आई वाज जस्ट वेटिंग फॉर एवरीबडी टू ज्वाइन वी कैन स्टार्ट राइट नाउ इट्स 11 so I think PPT is shown to everyone it's visible Yes, sir, visible. yes okay so ठीक है so today this is the first class that we need to start with you know सर मेरे technology तरफ आपकी वॉइस बहुत लो आ रही है, बहुत लो। मुझे बहुत धीरे धीरे सुनाई दे रहा है, बहुत स्लोली। हाँ तो मैम वो आपके नेटवर्क की प्रॉब्लम है हाँ, सर हमारी तरफ मेरे ठीक है। यहाँ से मैंने इसको सारा अपना सिस्टम पे भी देखा, प्लस अब मैंने इसको फोन पर भी लॉगिन कर रही हूँ। बहुत लो आवाज आ रही है। हमारी भारती तरफ तो जी ठीक है मैडम। भारती जी आप सर समझिए देयर आर मेरी ऑल तरफ पीपल से आर कनेक्टेड बहुत विद लो मी हो रही है सर, तो सीरियसली सर। मानसी जी से पूछ लीजिए अगर ये क्या बताती है, इनका सही है नहीं सही है। मानसी आर यू देयर सर मेरा नाम भारती है। नहीं आपका नाम तो भारती है दैट आई नो वी आर सेइंग कि अगर मानसी जी को भी सेम प्रॉब्लम हो रही है इट Yes, मींस sir, इट्स you अ are प्रॉब्लम audible. फ्रॉम आवर साइड यस Sir, you are clearly audible. हाँ तो भारती जी यही हम बोल रहे हैं कि बिकॉज दिस इज द प्रॉब्लम फ्रॉम योर एंड नॉट आवर एंड सो दैट्स व्हाई वी कांट हेल्प इन दैट चलो मैं सर इसको एक बारी दोबारा से रीस्टार्ट करके करती हूँ, जरा रिफ्रेश करके। नहीं ठीक है
So let's start with the today's session. That is basically we are here for the topic of technology innovation, new product management. Okay. So first of all, we start with unit one today. I just wanted one request from Mansi, if you can hear me, that we need to do two things. If we have already a WhatsApp group, so please add me in that so that I can share the other content with you guys, whatever the PPT and all I'll teach with you. Okay. And uh, विकास जी रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई क्या? ये सर मैंने स्टार्ट कर दिया। ठीक है. Then मानसी, कैन यू हियर मी? तुषार? Yes, sir. हाँ, मैं कह रहा हूँ कि इफ वी हैव ऑलरेडी ग्रुप सो ऐड कर लीजिए, अदरवाइज हमारा मैं आई थिंक आई एम आल्सो टीचिंग यू अनदर सब्जेक्ट एज वेल, बट we need to create a separate group for this particular subject, new product development management, so that I can share the different case studies which we will do in the class. मैं आपको वहाँ पे share करूँगा, as well as the PPTs that I'll use for my sessions जो मेरी खुद की हैं वो मैं आपको share करूँगा, as well as my personal teaching notes that I'll share with you. Clear? तो दैट्स व्हाई वी नीड वन व्हाट्सएप ग्रुप. अगर ऑलरेडी है ठीक है, नहीं तो आप क्रिएट कर लीजिए. सेकेंडली कि यू गाइस हैव दैट एसएलएम ऑफ दिस पर्टिकुलर कोर्स फ्रॉम द एसओएल जो आपको दिया गया है, सो प्लीज वो भी एक बार मेरे साथ शेयर कर लीजिए सो दैट आई कैन सी कि वो उनका कोर्स कंटेंट है अपने हिसाब से, सो दैट वी कैन एक्चुअली track all these things together कि what I wanted to add from my side and what is already there in the courses curriculum, so we can take all these together. Clear, Mansi? Can you do this for me? Okay, sir. So I think you have my number already. You guys are with me already. So please create the message me and with SLM, and then I'll start with that. Chaliye. Uh, Without that, today we are starting with the technology innovation and new product management. So what do you mean by innovation? Innovation is basically the process of introducing the new idea and the method or a product, basically. Okay. Because when you want to innovate, it means there is a process when you want to innovate some new idea or a new method or a new product. Okay. If I'm saying that iPhone has actually launched some new model, so that's not purely a new idea, maybe because that's already iPhone is there, and maybe there is some product, maybe there is some method is involved in that. Okay, so that's basically we can say that कि वहां पे हमारा कोई एक चीज नहीं होगी, या तो मेथड होगा या प्रोडक्ट होगा या आइडिया होगा. Now in that case basically it play a crucial role in economic growth. जब आप कोई नई चीज डेवलप करते हैं, कोई नया मेथड इंट्रोड्यूस करते हैं, तो वो बेसिकली आपको एक नई इकोनॉमिक ग्रोथ देता है. Excuse me, sir. जैसे आज की डेट में. हाँ जी मानसी. Sir, I don't have your number. Can you please share it with me? हाँ, राइट डाउन 8979 8979 75. हाँ, 8979 7595. सर ग्रुप है तो आपका? Sir, तो एक बार वो रिपीट कर दीजिए. वो 8979 दूसरा हरिंदर, वो दूसरा है, वो दूसरा ग्रुप है, दूसरा सब्जेक्ट है, मिक्स हो जाएगा. 8979 7595 7595. 07. Okay, sir. Thank you, sir. हाँ, हरिंदर वो दूसरा ग्रुप है जिसपे हम दूसरे सब्जेक्ट का कोर्स कंटेंट शेयर कर रहे हैं. फिर मिक्सअप हो जाता है तो लोगों को बहुत प्रॉब्लम होती है. ठीक है ना? तो सर ग्रुप बना इसका कोई? नहीं, अब वही मैं बोल रहा हूँ ना मानसी को कि शी विल मैसेज मी, शी विल क्रिएट वन ग्रुप एंड विल शेयर विद ऑल ऑफ यू so that I can share my own PPTs, my own teaching notes and my सर own case सिंपल studies. सर मतलब ऐसे करो ना, आपकी जो आपने ग्रुप ऑलरेडी बना रखा है उसमें 2 सब्जेक्ट की मतलब उसमें लिख दो कि 2 सब्जेक्ट, कैसे कई टीचरों ने किया है कि 2 सब्जेक्ट ऐड करके उसी हरिंदर, पे आप समझ सकते हो, इतनी बड़ी पॉपुलेशन होती है ऑनलाइन क्लासेस में, हर किसी को वो समझाना पॉसिबल नहीं होता. मैं आपकी अंडरस्टैंडिंग समझ रहा हूँ, आप समझो मेरी बात, आप समझ रहे हो, मैं समझ रहा हूँ,
बट अगर इतने लोग जुड़ते हैं और कुछ लोग जुड़ते भी नहीं है, बाद में देखते हैं, लास्ट टाइम पे क्लासेस देखते हैं, तो प्रॉब्लम होती है। आप समझो मेरी बात, ठीक है? अब थैंक यू सर, क्लियरली, थैंक यू सो मच। हाँ क्लियरली उस पे अगर मेंशन होगा ग्रुप पे, तो उनके लिए आसान होगा। बिकॉज जब ऑनलाइन सेशन में आते हैं ना, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, तो हमें थोड़ा सा ग्राउंड लेवल पे वर्क करना पड़ता है। क्लियर हरेंद्र? आई अप्रिशिएट योर थिंक कि वो सेम चीज अच्छी बात है, आप सही कह रहे हैं, बट सभी वो समझ पाए उस लेवल पे हैं अभी, या उतना टाइम है सबके पास? बिकॉज पीपल आर डूइंग जॉब्स, पीपल आर डूइंग थिंग्स, और इन द सब्जेक्ट जहाँ न्यू प्रोडक्ट मैनेजमेंट की हम बात कर रहे हैं, वो ये सब चीजें रिलेट करता है। क्लियर? यस सर। हाँ, तो आप भी ठीक है, आप गलत नहीं है, बट मैं भी, एक कंसर्न है मुझे, क्योंकि लोगों को मेरे पास मैसेजेस आते हैं, बोलते हैं, तो दैट्स वाई मुझे वो भी पॉइंट समझना जरूरी है। क्लियर? चलिए, तो मानसी, आई थिंक यू गॉट माय नंबर, यू जस्ट शेयर योर एसएलएम विद मी राइट देयर क्विकली। ठीक है, आप मुझे एक मैसेज कर दीजिए अपना नेम से और एसएलएम, और फिर हम एक ग्रुप क्रिएट कर देंगे, सो दैट वी कैन एक्चुअली वर्क इन दैट वे। क्लियर? चलिए, come back to the point. We are starting and with the unit 1. I am just introducing my subject, innovation, uh, technology innovation and new product management. तो मैंने बोला कि innovation basically आप तीन तरीके से कर सकते हैं। innovation तीन तरीके से हो सकता है, या तो आपका आइडिया नया हो, either your idea is new, okay, uh, sorry to disturb. Now come back to the point is innovation can be in the three ways: ideas, method and product. So idea, या तो फिर आपका completely आइडिया नया हो, कि आपने कुछ नया आइडिया कर लिया, जैसे फॉर एग्जांपल राइट नाउ वर्ल्ड वॉर चल रही है, वी ऑलरेडी नो देयर इज अ पाथ जो आपका ईरान और इराक से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की हम बार बार बात कर रहे हैं। अब वो पाथ ऑलरेडी पहले से वही है, बट अभी कुछ नए आइडियाज ये आए हैं कि ईस्ट में उन्होंने ये बोला है कि वी विल एक्चुअली क्रिएट वन कैनल जो कि डिफरेंट होगी, उससे अलग होगी, ईरान की तरफ से नहीं होगी, और एक कैनल हम बना देंगे जिससे कि ये प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगी। आई यू गेटिंग माय पॉइंट? तो एक नया आइडिया है, यस और नो? यस दिस इज सर। कॉल्ड न्यू आइडिया, कि वो सोच रहे कि हम ऐसा कुछ नया पाथ बना दे, सो दैट वो वाली प्रॉब्लम जो ईरान की आ रही है, वहीं से सारे शिप्स को जाना पड़ रहा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से, वो ओनली रास्ता ना हो या ओनली वे ना हो। ये एक नया आइडिया हो गया अपने आप में। मेथड की बात ये कर रहे हैं कि इफ यू आर यूजिंग एनी डिफरेंट टाइप ऑफ मेथोडोलॉजी, यानी मेथोडोलॉजी का मतलब जैसे इंडिया काम कर रहा है कि इंडिया इज एक्चुअली ट्राइंग एंड वर्क ऑन दैट, कि भाई हम अपनी गैसेस प्लांट्स पे ज्यादा प्रोड्यूस करें, हम अपने यहाँ कोशिश करें ऑयल्स की, कि हम थोड़ा बहुत ऑयल्स, या जैसे जो कि अभी चल रहा है, आप देखिए इंडिया में ये वर्क चल रहा है कि वो खुद से जो है ऑयल माइनिंग एंड ऑल पे वर्क कर रहे हैं। अगर वहां पे उन्हें वो सक्सेस मिल जाती है, तो हमारे पास खुद का भी ऑयल्स होगा थोड़ा। ठीक है, तो मतलब ये सब नए मेथड्स हैं कि जहां वर्किंग कर रहे हैं, या कोई नया प्रोडक्ट बना दे, या हम कुछ ऐसा बना दें कि सपोज, जैसे बहुत बार हमने सुना है कि पानी से इंजन चल सकता है, वाटर कैन एक्चुअली हेल्प इन द रनिंग द इंजन। अगर पानी से हम इंजन को चला पाए, तो फिर इंडिया के पास ये पानी तो बहुत ज्यादा है, अगर वो उसमें कुछ भी चेंजेस करके चला पाता है, या ऐसा कोई इनोवेशन आ जाता है, तो वो एक नया प्रोडक्ट मार्केट में आ जाएगा। सो दिस इज व्हाट आई एम गिविंग यू एग्जांपल, दैट इन तीनों ही जगह पे आपने किस तरीके से कुछ नया गया, और उसे हम इनोवेशन बोल सकते हैं। सो आर यू गेटिंग माय पॉइंट एवरीबॉडी, कि इनोवेशन क्या होती है, या कोई डाउट है यस उसमें? सर। नो सर, थैंक यू। ओके,
Okay. So now we going forward into the next point that it plays a crucial role in economic growth. Obviously, जब आप खुद के ऑयल की बात करेंगे, खुद के गैसेस प्रोडक्शन की बात करेंगे, तो इकोनॉमिक ग्रोथ तो हो ही जाएगी। अगर आप दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं है, जो कि इस टाइम पूरी की पूरा दुनिया फेस कर रहा है, तो सबको समझ में आ रहा है कि सेल्फ इंडिपेंडेंट होना कितना इंपॉर्टेंट है। दैट इज अ बिजनेस कम्पिटिटिवनेस एंड दैट इज द टेक्नोलॉजी एनहांसमेंट दैट वी आर टॉकिंग अबाउट। इनोवेशन जो होता है दैट कैन एक्चुअली रेंज फ्रॉम द इंक्रीमेंटल इंप्रूवमेंट टू द रेडिकल ब्रेक थ्रू। ठीक है, और ये जो हमारी प्रेजेंटेशन है ये बेसिकली एक्सप्लोर करती है जो की एस्पेक्ट्स हमारे इनोवेशन के, क्या ड्राइवर्स हैं, मतलब जब इनोवेशन करना है तो उसके क्या क्या एस्पेक्ट्स होने चाहिए, किस तरीके से ड्राइव करेंगे या कैसे सोचेंगे कि हम क्या इनोवेशन कर सकते हैं, कैसे वो रिलेट करेगा क्रिएटिविटी से, रिसर्च से, टेक्नोलॉजी से। और आज की डेट में एजुकेशन में भी डीयू ने बहुत ज्यादा फोकस किया है। 4 ईयर प्रोग्राम्स में बात हो रही है, 4th ईयर में रिसर्च को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जा रही है। और ये भी बोल दिया है कि यू कैन स्ट्रेट डायरेक्टली टू द पीएचडी इफ यू आर इन मास्टर्स, यू कैन डायरेक्टली जम्प इनटू द पीएचडी, यू कैन डायरेक्टली डू द रिसर्च। तो ये सब जो चीजें इन्वेंशन जो ये हम बातें कर रहे हैं एजुकेशन सेक्टर में जहाँ पे टीयू रोल प्ले कर रहा है, तो वहां पे वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट दिस इनोवेशन मैनेजमेंट ओनली, सो दैट अगर लोग रिसर्च करेंगे, अगर लोग चीजें करेंगे, सो दैट दे कैन एक्चुअली गेट समथिंग बेटर। क्योंकि अगर आप देखिए इतनी बड़ी पॉपुलेशन है हमारे पूरे देश में, अगर हर बंदा पढ़ रहा है या सोच रहा है, हर किसी के पास अपना ब्रेन है, अगर वो अपने ब्रेन में एक छोटी सी चीज भी इन्वेंट करता है और वो छोटी सी चीज एक बड़ा इम्पैक्ट डालेगी पूरी की पूरी कंट्री पे, ऐसे इतने लोग हैं, इतने लोग सोचें और कुछ करें, तो हम कहाँ होंगे, हमारा देश इंडिपेंडेंसी में कहाँ जा सकता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? जो कि हम आज की डेट में फेस कर रहे हैं, पॉपुलेशन तो बहुत है, बट हाउ मेनी पीपल आर एक्चुअली putting the effort into finding something new so that they can actually add to the society, add to the country, and we will as an whole grow together. Yes or no? Yes, sir. So this is what we are talking about, the technology innovation management. Now understanding innovation is definition. Basically innovation refer to the creation, implementation of the new ideas that basically add the value. Okay, and it is not limited to the technology, it is span across the business models, product, services and processes. Examples are the transaction from the landline phones to the smartphones and the rise of the electronic vehicles. अगर मैं आज की डेट में पूछूं कि टेक्नोलॉजी में नया क्या चल रहा है, तो आप ऐसे आधे से ज्यादा लोग मुझे लग रहा है मशीन लर्निंग और एआई तक ही बोल पाएंगे। यस और नो? Yes, sir. बट सर डू यू बिकॉज नो? हम डिपेंडेबली एआई पर हो चुके हैं 80% तो। आती वो ठीक है, बट मैं यहाँ बात कर रहा हूँ कि आपको उतनी ही नॉलेज है। ये जो एआई और जो ये आप बात कर रहे हैं, ये तो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के लिए आ चुका है, मतलब आज आपके हाथ में है। इसका मतलब अगर मैं इसके रिसर्च के पॉइंट ऑफ व्यू की बात करूं, सो इट वाज अ 30 ईयर बैक, मतलब ये 30 साल पहले इन्वेंट हुआ था और आज की डेट में नॉर्मल पब्लिक के पास है। बट अगर आपको आज की डेट में इनोवेशन की बात करनी है, अंडरस्टैंडिंग की बात करनी है, तो द लेटेस्ट वर्ड इन द मार्केट इज एजेंटिक एआई। एजेंटिक ओके एआई सर। इज द लेटेस्ट वर्ड, इज द यस। लेटेस्ट थिंग। और एआई और एमएल से 7-8 स्टेप हम आगे जा चुके हैं। उसके बीच में एआई एजेंट्स भी हैं, उसके बीच में आपका डीप लर्निंग भी है, उसके बीच में आपका बहुत सारी और चीजें हो चुकी हैं, जो कि रिसर्च के पॉइंट ऑफ, जब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे इस सब्जेक्ट में, तो हमें फोकस करना पड़ेगा एजेंटिक एआई पे, क्योंकि एआई और एमएल तो नॉर्मल पब्लिक के पास आ चुका है, वहां पे उतना नया कुछ करने के लिए अब रहा नहीं है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। देयर इज ऑलरेडी अ टेक्नोलॉजी, यू नीड टू यूज इट। But we are talking about in the subject that you need to find something new. So you need to find something new, that you need to aware about that what is actually new in the market right now, and what is the research is going on in the right now, at what step. I'll also show you that figure जो मैं बात कर रहा हूँ, मैं वो भी आपको शो करूंगा, but अभी I'm just going forward in this PPT only. So now characteristic of innovation. कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इनोवेशन जब हम बात करते हैं तो उसमें 4 कैरेक्टरिस्टिक बहुत इंपॉर्टेंटली रोल प्ले करती हैं। एक नोवेलिटी, एक वैल्यू क्रिएशन, एक एप्लीकेबिलिटी और एक रिस्क एंड अनसर्टेनिटी। यानी कि जब कोई भी नई चीज आप इंट्रोड्यूस करते हैं तो उसमें सबसे पहला इंपॉर्टेंट पार्ट तो कि नोवेलिटी होना चाहिए। इट मीन दैट समथिंग न्यू और समथिंग इंप्रूविंग एग्जिस्टिंग आइडिया। यस और नो? कि यानी कि आज की डेट में अगर हमें कोई इंडिया में इस तरीके से कोई इंजन बना दे जहां पे वो
पानी से चलने लग जाए, या पानी या कुछ और मिला के, मतलब जो रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल है उन्हीं रिसोर्सेज से अगर वो इंजन रन हो जाए, तो वो हमारे लिए सच में नोवेलिटी है। यस और नो? यस सर। 10 वैल्यू क्रिएशन, अगर मस्ट प्रोवाइड द बेनिफिट टू द इंडिविजुअल बिजनेस और सोसाइटी, यानी कि अगर वो फाइनली एक्सेप्ट हो जाए मार्केट में और बोले हाँ ये सस्टेनेबल मॉडल है, ये चल सकता है, दिस इज एक्चुअली वर्किंग आउट, तो वो वैल्यू क्रिएशन भी होगा सोसाइटी में। एप्लीकेबिलिटी, मतलब कि वो फीजिबल होना चाहिए प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशंस के लिए, यानी कि वो प्रैक्टिकली आप कर पाए, कार्स में डाल पाए और मार्केट में ला पाए। अब रिस्क एंड अनसर्टेनिटी दैट यूजुअली इन्वॉल्व इन टॉकिंग टेकिंग द रिस्क एंड ओवरकमिंग चैलेंजेस। अब रिस्क तो आएंगे ही, क्योंकि जब पहली बार वो इंजन आएगा, पहली बार कोई कार इंट्रोड्यूस होगी, तो लोगों में डर होगा, लोगों में सोच होगी, कौन उसे खरीदेगा, कौन अपना पैसा इन्वेस्ट करेगा। तो वो जो सारी चीजें हैं वो सब तो इन्वॉल्व होंगी। पहले तो बनाने वाले के लिए रिस्क है, प्रोडक्शन के में रिस्क है, फिर बायर के लिए भी रिस्क है। दिस इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट, अनसर्टेनिटी एंड देन रिस्क इन्वॉल्व इन एवरी न्यू थिंग दैट इज एक्चुअली इन्वॉल्व इन द मार्केट। यस और नो? यस सर। Now, what are the level of innovation? I think you can see on my screen that the level of innovation is that incremental innovation, यानी कि आप continuously improve कर रहे हैं अपने existing product में। जैसा कि मैंने अभी बताया, AI ML 30 साल पहले से चल रहा है, आज की डेट में मार्केट में आ गया, बट हम उसमें continuous improvement कर रहे हैं, जिसके बाद हमें आज नया वर्ड मिल चुका है, एजेंटिक AI। क्लियर? जिसके अब हमें नया वर्ड मिल चुका है, एजेंटिक AI। सो आई थिंक यू गाइज आर अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट इन दैट वे। क्लियर? यस सर। Now, next is radical innovation. That's a breakthrough changes that redefine the industry. For example, artificial intelligence in healthcare. तो रेडिकल चेंजेस हो रहा है, बिकॉज हेल्थ केयर में जब एआई आ गया, आज की डेट में एआई रोबोटिक्स आपकी सर्जरीज कर रहे हैं, एआई रोबोटिक्स आपको करके दे रहे हैं, तो एक्यूरेसी बढ़ गई है, क्वालिटी बढ़ गई है। सो दिस इज व्हाट वी आर एक्चुअली हैविंग। डॉक्टर्स की जो कमी है वो मशीन से पूरी हो रही है, क्योंकि डॉक्टर्स उतने नहीं है जितने होने चाहिए। तो वो भी आपके लिए फायदा हो गया यहाँ पे। Disruptive innovation, and that can create a new market and discipline as per solution. For example, the ride sharing services, वहाँ पे disruptive innovations भी होती है। And then architecture innovation that change the structure of an existing system to enhance the performance, यानी कि modular smart for design। जैसे कि जब आपके पास फोन आए थे तो बहुत कीपैड वाले नॉर्मल फोन थे, धीरे धीरे चेंज होते हुए आज की डेट पे जो आपके पास फोन्स हैं, दैट इज बेसिकली totally a different phones through which you can actually, what can I say, you can actually do everything whatever AI, और भी अब आपके आज के सब स्मार्टफोन में AIs and all के जो वर्जन्स आ रहे हैं, that's tremendous, and you can actually use it for your benefits as well. Now, what are the characteristics? I've already discussed. I've already discussed the level of innovation. Now, what are the types of innovation? यानी कि innovation की क्या types होते हैं? प्रोडक्ट इनोवेशन की अगर हम बात करें कि इंट्रोड्यूसिंग न्यू और इम्प्रूव्ड प्रोडक्ट, जैसे कि आज की डेट में जब हमने देखा कि भाई पेट्रोल की और उसकी प्रॉब्लम है, तो इलेक्ट्रिक कार्स आपके पास आ गई, स्मार्ट वॉचेस आपके पास आ गई, जिससे कि आप अपने पूरे हेल्थ को यू नो वो कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, और अपने हेल्थ के लिए अंडरस्टैंडिंग है कि मतलब कोई भी हार्ट बीट कितनी है, बेसिक कितने स्टेप रन हो रहे हैं एंड ऑल दैट स्टफ, ये सब आप कर सकते हैं। क्लियर? नाउ we need to move forward is key drivers of innovation. Key drivers of innovation are the प्रोसेस, जहां पे हम प्रोसेस की बात करें वहां पे हम एनहेंस करें मैन्युफैक्चरिंग या सर्विस डिलीवरी, यानी ऑटोमेशन की जो फैक्टरीज में आ रहा है। बिजनेस मॉडल इनोवेशन दैट चेंजिंग हाउ द कंपनीज आर डिलीवरिंग वैल्यू, दैट्स अ सब्सक्रिप्शन बेस्ड सर्विस लाइक अ नेटफ्लिक्स। अब सब्सक्रिप्शन बेस्ड सर्विसेज आपकी नेटफ्लिक्स में क्या होता है कि नहीं? यस और नो? हाउ नेटफ्लिक्स एक्चुअली गिविंग यू द बेनिफिट्स, या यस amazon सर। प्राइम्स, amazon यस सर। प्राइम, ये सब सावन, जियो और जितने भी सॉन्ग्स के बहुत सारी चीजें, तो सब्सक्रिप्शन बेस्ड जो मॉडल है, ये एक प्रोडक्ट आपका एक तरीके से
बिजनेस मॉडल इनोवेशन है। सर्विस इनोवेशन बेसिकली जो इंप्रूव करता है सर्विस डिलीवरी मेथड्स को। क्लियर? जैसे टेलीमेडिसिन है, हेल्थ केयर। कैन यू गिव मी वन एग्जांपल ऑफ दैट? सर दूर बैठे जैसे सर रोबोटिक से ऑपरेशन कर सकता है डॉक्टर, टेलीमेटिक्स ने हेल्थ केयर। और सबसे दूसरा क्या चीज है इंपॉर्टेंट जो है कि भाई अगर आप मान लीजिए किसी अनरिमोट एरिया में है और आपको कोई कुछ भी प्रॉब्लम हो जाती है तो आप किसी भी फोर्टिस, एम्स, किसी भी बड़े बड़े हॉस्पिटल्स का, डॉक्टर्स का ऑनलाइन अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। और अगर वहाँ स्मॉल डॉक्टर भी आपके पास अवेलेबल है, वो उस डॉक्टर उसको समझा के दे कैन एक्चुअली प्रोवाइड यू दैट मेडिकल सर्विसेज, जिससे कि आपका जो है काफी फायदा हो सकता है और आपकी जान बच सकती है, आप इंप्रूव कर सकते हैं। यस और नो? यस सर। तो यही जो है 4 टाइप के इनोवेशन होते हैं: प्रोडक्ट, प्रोसेस, बिजनेस एंड सर्विस। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे टाइप ऑफ इनोवेशन। यस और नो? यस यस सर। सर। नाउ अब हमें इंपॉर्टेंट है जो मैं बात कर रहा था कि व्हाट आर द की ड्राइवर ऑफ इनोवेशन, यानी कि अगर इनोवेशन होना है तो वो कैसे होगा, की ड्राइवर्स क्या होंगे उसके। तो सबसे पहला जो ड्राइवर होता है इनोवेशन में वो होता है मार्केट डिमांड। यानी कि आपको कंज्यूमर की नीड्स को समझना पड़ेगा, उसकी प्रेफरेंसेस को समझना पड़ेगा, जो कि डेवलप करेगी नया सॉल्यूशन। जैसे आज की डेट में आपके पास बहुत ही अच्छा एग्जांपल, बार बार मैं इस पे आ जाता हूँ, जो ईरान और अमेरिका की जो हम बात कर रहे हैं, वॉर चल रही है, सारा का रूट डिस्टर्ब हुआ है, पूरी की पूरी कंट्रीज इसमें इन्वॉल्व हो पा रही है। तो नीड क्या है कंज्यूमर की? पेट्रोल। नीड क्या है कंज्यूमर्स की? प्रेफरेंसेस क्या है? गैसेस। यस और नो? यस सर, यस सर। पेट्रोकेमिकल्स तो वगैरह ऑल दोस हाँ, तो अब देखिए यहां से जब आपने नीड को समझा, गैस, पेट्रोल जो थी तो पहले भी, पर जिस तरीके की सिचुएशन अब बनी है उससे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आ गई कि अब भाई जब इतनी ज्यादा अगर ऐसे रोज होता रहेगा या इन फ्यूचर भी कभी होगा और कंट्रीज को फेस करना पड़ेगा। कितनी कंट्रीज में शटडाउन लग गया है, कितनी कंट्रीज बैठ गई हैं बिकॉज उन पे खुद का है नहीं कुछ। तो या तो कोई नया आप प्रोडक्ट लॉन्च करें या कोई उस जिससे कि आपकी डिपेंडेंसी वहां पे ना रहे, या फिर आप इसके कहीं रिसोर्सेज बनाएं जिससे कि आप ये चीजें अपनी कुछ कर सकें। यानी कि दिस इज व्हाट द मार्केट डिमांड, दिस इज व्हाट वी आर कनेक्टिंग दिस एग्जांपल इन रियल लाइफ हियर इन आवर सब्जेक्ट। तो टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, यानी कि अब टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट मतलब वही इलेक्ट्रिक कार्स जो आई, उसका रीजन भी यही है कि इन सिचुएशंस को देखते हुए पॉल्यूशन भी बढ़ाती हैं, डिपेंडेंसी भी दूसरे पे है, तो फिर इलेक्ट्रिक कार्स वहां पे आई। यानी कि एडवांसमेंट इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज दैट क्रिएट अ न्यू अपॉर्चुनिटी, एआई, ब्लॉकचेन, आईओटी। अब ऑटोमेटिक कार्स भी आ रही हैं, रोबोटिक कार्स भी आ रही हैं। तो वहां पर टेक्नोलॉजी एनहेंसमेंट ये सेकंड ड्राइवर है कि आप किस तरीके से टेक्नोलॉजी को उसमें ला सकते हैं जो कि वो आपकी हेल्प करे। कंपटीशन में मतलब कि हम बात करें तो बिजनेस इनोवेशन टू स्टे अहेड, बिजनेस इनोवेशन टू स्टे अहेड बेसिकली इन द मार्केट, यानी कि आपको कंपटीशन में हमेशा आगे रहना है। यानी कि ये जिसने सबसे पहले इलेक्ट्रिक कार बनाई जैसे चाइना एंड ऑल बहुत सारे, तो वो हमेशा कंपटीशन में आगे रहे। गवर्नमेंट पॉलिसीज, यानी कि जो रेगुलेशन, फंडिंग, इनिशिएटिव, अगर आप कुछ करना चाहते हो और गवर्नमेंट आपको सपोर्ट नहीं करी तो फिर उस कंट्री में आप किस तरीके से करेंगे। यानी गवर्नमेंट पॉलिसीज होना बहुत जरूरी है। ग्लोबलाइजेशन, यानी कि क्रॉस बॉर्डर कोलैबोरेशन जो फास्टर नॉलेज शेयरिंग के लिए, वो होना बहुत जरूरी है। तो ये जो पांचों चीजें हैं, मार्केट डिमांड, टेक्नोलॉजी, कंपटीशन, गवर्नमेंट एंड ग्लोबलाइजेशन, ये ही की ड्राइवर है इनोवेशन के। यस और नो? अब हम ड्राइवर्स को डिवाइड करेंगे इंटरनल और एक्सटर्नल ड्राइवर्स में। जो इंटरनल ड्राइवर्स हैं वो है ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर, जो सबसे पहले एनकरेज करता है आपको एक्सपेरिमेंट करने के लिए।
अगर आप एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में, ऐसी जगह, ऐसी कंट्री में नहीं है, क्लियर, नहीं है, जहां पे बेसिकली आप उसको अट्रैक्टिव वे में, ठीक है, नहीं कर पाए, देखिए अगर आप एक कंपनी में है, मतलब आप में से बहुत से लोग जॉब तो करते ही होंगे, यस और नो? हाउ मेनी पीपल आर ऑलरेडी डूइंग जॉब्स? संतोष, आप यस करते हैं? सर। हाँ, चलिए, तो जैसे आप किसी भी कंपनी में जॉब करते हैं, किसी भी कंपनी में कहीं भी कुछ भी काम करते हैं, डजेंट मैटर आप क्या कर रहे हैं, कुछ काम कर रहे हैं आप, जॉब कर रहे हैं आप, तो अगर आपकी कंपनी का वो कल्चर नहीं है कि आप कुछ नया करके लाएं, कुछ अच्छा करके लाएं, आपको सपोर्ट करे, आपको फंडिंग दे, आपको एनकरेज करे, तो अगर ऐसा नहीं है तो क्या ये पॉसिबल है आपके लिए कि आप अपने आप को एनकरेज रख पाएंगे? क्योंकि आपके पास टाइम तो वही है। अगर आप कंपनी में जॉब कर रहे हैं, कंपनी आपको सपोर्ट कर रही है, वहीं बैठ के 1-2 घंटे अगर आप कुछ नया कर पा रहे हैं जो कंपनी को भी फायदा दे रहा है, आपको भी दे रहा है, अगर ऐसा नहीं है, आप आगे, यस और नो, बताइए। यस सर। तो इसीलिए वन ऑफ द इम्पोर्टेंट इज ऑर्गेनाइजेशन में कल्चर होना चाहिए, लीडरशिप, सपोर्ट और विजन होना चाहिए। अगर इंडिया में नई चीजें होनी है, नए बिजनेसेस खुलने हैं, तो एंटरप्रेन्योरशिप को गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है, विच इज गुड। अगर सपोर्ट नहीं करेगी नए बिजनेसेस को, तो हम कैसे सेल्फ इंडिपेंडेंट बन पाएंगे? एम्प्लॉय स्किल एंड क्रिएटिविटी, एम्प्लॉय अपनी स्किल और क्रिएटिविटी, मतलब आज की डेट में अगर आप पे कोई स्किल नहीं, स्किल एनहेंसमेंट इज नीडेड। डिग्री आपको थ्योरेटिकल नॉलेज देती है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ थिंग्स देती है, स्किल आपको उसका प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन सिखाती है। जब ये दोनों चीजें आपके पास होंगी तो ही एक अच्छी जॉब आपके पास होगी, या तो ही आप एक अच्छा बिजनेस या कुछ भी नया अच्छा कर पाएंगे। तो इसका मतलब 3 इंटरनल फैक्टर्स हैं, इंटरनल ड्राइवर्स हैं, ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर, लीडरशिप, एम्प्लॉय स्किल। नाउ ये इंटरनल के बाद एक्सटर्नल क्या है, कैसे चेंज होता है कस्टमर के बिहेवियर और एक्सपेक्टेशन में। अब मान लीजिए आप ही कस्टमर है, आप ही अपने ऑफिस जाते हैं, कल को जब तेल की शॉर्टेज होने लगेगी, आपको तेल नहीं मिलेगा, आप फ्रस्ट्रेट होंगे, कंपनी कहेगी आपको आना है, जॉब्स में आपको दिक्कत होगी, डेली की प्रॉब्लम होगी, तो आपको खुद किस पे स्विच होना पड़ेगा? इलेक्ट्रिक पे स्विच होना ही पड़ेगा, यस और नो? आपको इलेक्ट्रिक नो कार लेनी पड़ेगी। सर हम इसमें ट्रांसपोर्ट भी तो यूज कर सकते हैं। तो ट्रांसपोर्ट, भारतीय ट्रांसपोर्ट किससे चलेगा? आपके इंडिया में कितना ट्रांसपोर्ट है? आप पूरी इंडिया की बात कीजिए, 1-2 जगह की या छोटी मोटी चीजों की बात छोड़िए, तो वहां पे कौन सा ट्रांसपोर्ट है जो, कितना ट्रांसपोर्ट है जो इलेक्ट्रिसिटी पे बेस्ड है? सर मेट्रो तो हर जगह अवेलेबल है। हर जगह अवेलेबल है मेट्रो। कहाँ अवेलेबल है? बन ही रहा है अभी। भारतीय, कितने आप सिटी में मेट्रो कितना, अवेलेबल? आपने देखिए, आप एक एज एन एमबीए, एज एन मैनेजर, आप एक फ्यूचर में कंपनी में होंगे, आपने इतना बड़ा स्टेटमेंट दे दिया कि इंडिया में हर जगह मेट्रो अवेलेबल है। इंडिया, पूरा इंडिया की बात कर रहे हैं हम भारती, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दिल्ली, नोएडा, मेरठ एंड ऑल दैट स्टफ। मेरठ वगैरह में भी अभी लाइक पहुंची है। जैसे अपना मेट्रो सिटी बोले तो मुंबई है, बेंगलुरु है। मुंबई में जो मेट्रो सारे मेट्रो चलती है, सिटी हो अच्छा आप, सकते हैं। नहीं कोई बात नहीं, एक्सक्यूज आपने मी, एक अच्छी बात, बार चलो सर से तो चलो बोलने मैं दो ये, प्लीज, सर को तो बताने दो। भारती, एक मिनट एक आ- मिनट आप अर्बन सिटी में बस नहीं नहीं कोई मेट्रो बात हाँ नहीं, जी सर। मैं कह रहा हूँ मेट्रो भी है भारती, चलो मैंने आपका ये कॉन्सेप्ट 1% बाय किया। अब हमें थोड़ा सा डीप सोचना पड़ेगा एज अ मैनेजर कि आप, मेट्रो तो है,
क्या आप ये कहते हैं कि मुंबई की जो मेट्रो है वो उसके 100% ट्रैफिक को हैंडल कर सकती है? सर 100% नहीं है, बट थोड़ा तो बहुत वो कित कर सकती है। नहीं, थोड़ा बहुत 100% तो नहीं है। भारती, why we are actually talking about here, we are talking about innovation, sustainability, ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ, वो कुछ परसेंट से तो नहीं होती ना। मेट्रो सर ओके सर। 100% सर्विस नहीं देती है सर, इतना पॉपुलेशन हमारा बढ़ रहा है। हम दिल्ली में मेट्रो बनाए थे तो हम सोचे थे डीटीसी से हम शिफ्ट कर लेंगे मेट्रो पे, लेकिन मेट्रो में भी हो उतना ही नहीं ही सकता। भीड़ है, बस में भी उतना ही वही भीड़ वही है, वही उसके गाड़ी गाड़ी भी हम उतना ही यूज कर रहे हैं। नहीं, ये तो आप सर देखिए, आप देखिए, मैं हर चीज में बताता हूँ। देखिए, बहुत सारी चीजें हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जिनमें नॉलेज है बट शायद वो फिजिकली एबल्ड नहीं है, तो उन्हें अपनी सवारी से ही जाना पड़ता है। कुछ बड़े लोग हैं जो वहां पे सरवाइव नहीं कर सकते, उन्हें भी जाना पड़ता है। मेट्रो या ये सब चीजें डिवाइड तो करती हैं, बट मैं यहाँ जब बात कर रहा हूँ, आप अपनी जगह ठीक है, आप एक एक एग्जांपल देके ठीक है, बट जब मैं बात कर रहा हूँ, मैं कंप्लीट कंट्री की बात कर रहा हूँ। जब मैं बात कर रहा हूँ, मैं कंप्लीट इनोवेशंस की बात कर रहा हूँ। जब मैं बात कर रहा हूँ, सस्टेनेबिलिटी की बात कर रहा हूँ, मतलब मेरा इम्पैक्ट एक बिगर इम्पैक्ट है। आई एम नॉट सीइंग ऑन वन कंट्री और वन पर्सन और वन थिंग। I'm just trying to tell you how we can have all grow together and can achieve a bigger growth as a whole we are talking about here. अब ऐसा तो नहीं है, जिस कंट्रीज में अभी शटडाउन चल रहा है, जिन पे तेल नहीं है, कुछ नहीं है, तो क्यों चल रहा है उन पे शटडाउन? उन पे क्या मेट्रोज नहीं है? उन पे क्या और साधन नहीं है? पर वो सब सफिशिएंट नहीं है डेली चीजों के लिए। आप अगर बात करते हैं तो सिर्फ ऑफिस जाना ही आपका काम नहीं है। आपको जितने प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं वो ट्रक की वजह से मिल रहे हैं, वहां पे कंटेनर्स आ रहे हैं शिप की वजह से आ रहे हैं। शिप किससे चलता है? क्या शिप इलेक्ट्रिसिटी से चलता है क्या? आप ये बताइए मुझे, शिप कैसे रन होता है? फ्यूल से, हाँ, क्रूड तो फिर ऑयल। तो आप बताइए, आप ये सब चीजें तो छोड़ दीजिए जो आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं। चलिए, रास्ते भी खुले रहे तो भी तो पेट्रोल ही चल रहा है उसमें, क्रूड ऑयल से चल रहा है, चीजों चल रहा है। तो मतलब आप एक बिगर लेवल पे इम्पैक्ट जब हम बात करें तो वहां पे थोड़ा सा हम कॉन्सेंट्रेट करने की कोशिश करें। दैट्स एन एक्सटर्नल ड्राइवर आर द चेंज इन द कस्टमर बिहेवियर एंड एक्सपेक्टेशन। तो फिर कस्टमर के बिहेवियर में चेंज होता है कि भाई अब धीरे धीरे मुझे इलेक्ट्रिक पे जाना पड़ेगा, या अब हमारे में चेंज आने लगा है, हम भी सोचने लगे कि अब हमारी गाड़ी भी इलेक्ट्रिक होनी चाहिए। यस और नो? जब कभी अगर ऐसा होगा कि इलेक्ट्रिसिटी में प्रॉब्लम आएगी तो फिर शायद कुछ और आएगा। दिस इज व्हाट द चेंज इन द इन्वायरमेंट, इनोवेशन हमेशा चलता रहेगा। कंपटीटर्स जो होंगे हमारे, वो इनोवेशन और मार्केट ट्रेंड में काम करेंगे। जैसे कि टाटा ने देखा, बहुत जल्दी से इलेक्ट्रिक में स्विच कर गया। अगर आज की डेट में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक में सस्ते व्हीकल दे रहा हो कोई, तो वो कौन है? टाटा ही है। यस और नो? इंडिया के अंदर तो सर किया भी है। किया का सस्ता तो नहीं होगा इतना टाटा से। सर सस्ता है, जैसे क्विड हो गई, ये सब गाड़ी सस्ती हैं, मतलब इलेक्ट्रिक में। टाटा महंगा है थोड़ा। क्विड, किया की क्विड कहाँ है? किया क्विड तो रेनॉल्ट की है, जहां तक मुझे पता है। रिनोल्ड्स। हाँ हाँ, वो होगा, वो अभी आया है, बट फिर भी मतलब फिर वही वाली बात है कि ठीक है, चलिए क्विड भी आ गया है, टाटा भी आ गया। टाटा में थोड़ा सा हमारा ट्रस्ट रहता है। एंड देन टेक्नोलॉजी डिस्ट्रप्शन एंड पॉलिसी चेंजेस वो भी धीरे धीरे हो रहे हैं। तो दीज आर ऑल द ड्राइवर्स ऑफ इनोवेशन बेसिकली व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट। तो भारती, नाउ यू अंडरस्टैंड माय कॉन्सेप्ट? यस सर। Okay, okay. Thank you. Now we are moving to the next point, that is a source of innovation. हमने ड्राइवर्स की बात कर ली, हमने कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर ली, हमने टाइप्स की बात कर ली। अब हम करेंगे सोर्सेस क्या है। व्हाट आर द सोर्स जहां से हमें इनोवेशन मिलता है या हो सकता है, वो सोर्सेस क्या है? जैसे जो एनर्जी है वो सन से आती है, वो सोर्स है। ऐसे सोर्सेस इनोवेशन के क्या है? द रिसर्च एंड डेवलपमेंट, दैट्स इंटरनल इन्वेस्टमेंट इन द न्यू टेक्नोलॉजी एंड द प्रोसेस। देखिए, R&D, हर कंपनी का R&D है। एप्पल का अपना है, सैमसंग का अपना है, और भी बड़ी बड़ी कंपनियां जो और किसी इंडस्ट्री के लेवल पे वर्क कर रही है, सबका अपना R&D होता है। और इवन इन एजुकेशन, मैंने अभी बताया कि DU ने खुद 4th ईयर को रिसर्च से कनेक्ट किया है। खुद मास्टर्स के बाद UGC ने बोल दिया कि देयर इज नो नीड ऑफ MPhil, नाउ डायरेक्टली यू कैन डू PhDs। ये सब जो चीजें हैं, ये इसीलिए हो रही है क्योंकि सोर्स है रिसर्च एंड डेवलपमेंट।
इनोवेशन का। जब रिसर्च नहीं होगी, डेवलपमेंट नहीं होगी, लोग रिसर्च नहीं करेंगे, पढ़ेंगे नहीं, सोचेंगे नहीं, तो नया आइडिया आएगा कहां से? यूजर्स के फीडबैक। आज की डेट में आप छोटे से छोटे रेस्टोरेंट में खाना खाने जाएं, इवन वॉशरूम्स में भी जाएं, वहां भी आपसे फीडबैक लिए जाते हैं। यस और नो? लिया जाता है कि नहीं? प्लीज रेट। जैप्टो यस से सर, मंगाते लिया हैं, जाता है। ब्लिंकिट से मंगाते हैं, हर जगह आपको रेटिंग 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 पे रखा हुआ है। क्यों? क्योंकि जो यूजर का फीडबैक है वो एक सोर्स ऑफ इनोवेशन है। भाई इनोवेशन आएगी कहां से? पहले तो प्रॉब्लम आएगी ना, अभी तो मैंने ऊपर बात की थी। प्रॉब्लम आई कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस बंद हो गया, वो रास्ता बंद हो गया, तो कैनल की उन्होंने सोची, अब तक सोची नहीं थी क्योंकि प्रॉब्लम आई नहीं थी। तो जब प्रॉब्लम आएगी तभी सोच आएगी, और प्रॉब्लम कहां पे आती है? जब यूजर फीडबैक देता है। यस और नो? भारती, राहुल, मानसी, आई यस अंडरस्टैंडिंग माय सर, यस पॉइंट? सर। So, यस सर, यस सर। तो यानी कि फीडबैक एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है जहां से हमें एक नया इनोवेशन का आइडिया मिल सकता है। ओपन इनोवेशन जहां पे हम कोलैबोरेट करते हैं एक्सटर्नल ऑर्गेनाइजेशन या इंडिविजुअल्स के साथ, वो ओपन इनोवेशन होती है जहां पे हम कोलैबोरेट करते हैं। ठीक है? जैसे कि अगर दो कंपनी मिलके कुछ नया बना दे या कुछ ऐसा बना दे, जब वो कोलैबोरेशन से, तो वो ओपन इनोवेशंस में आता है। पार्टनरशिप बेसिकली दैट वर्किंग विद द यूनिवर्सिटी, स्टार्टअप्स एंड रिसर्च इंस्टीट्यूशन, वहां पे हम पार्टनरशिप करते हैं, फंडिंग लेते हैं बहुत सारी यूनिवर्सिटी मिलके, देन दे आर टॉकिंग अबाउट दैट। एंड मार्केट ट्रेंड्स, दैट्स बेसिकली ऑब्जर्विंग द शिफ्ट इन कंज्यूमर बिहेवियर एंड इमर्जिंग ट्रेंड, जहाँ पे वो ऑब्जर्व करते हैं शिफ्ट को कंज्यूमर के बिहेवियर में और इमर्जिंग ट्रेंड्स में। सो नाउ आई थिंक अंडरस्टैंड कि ये 5 सोर्स ऑफ इनोवेशन क्लियरली आप समझ चुके हैं रियल लाइफ एग्जांपल्स के साथ। यस सर, ओके, yes, sir. नाउ we'll start with another point, that is the tech innovation process. So I just want, please everyone see this all 5 pointers जो मैंने यहाँ लिखे हैं, थोड़ा सा आप पढ़िए 1 सेकेंड, एंड देन आई विल एक्सप्लेन, बिकॉज तभी उस चीज को समझ पाएंगे। डन? सबने ऑब्जर्व कर लिया? Yes, sir. तो यस देखिए, सर। सबसे पहले हमारी यहाँ पे बात आ रही है आइडिया जनरेशन, यानी कि आप ब्रेनस्टॉर्मिंग कीजिए, दिमाग लगाइए, मार्केट को रिसर्च कीजिए, मार्केट को एनालाइज कीजिए, आइडेंटिफाई कीजिए अपॉर्चुनिटीज को, तो वहां से इनोवेशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है। ठीक है? नेक्स्ट, आप कॉन्सेप्ट को डेवलप कीजिए, रिफाइन कीजिए आइडिया को एक फीजिबल कॉन्सेप्ट में। यानी कि सबसे पहले आपने आइडिया देखा कि क्यों हम नहीं अपने यहाँ पर ही खोजते कि कहीं यहाँ कहीं तेल हो, या आसपास समंदर में किसी भी जगह हम रिग लगा के ट्राई करें, शायद कहीं पे तेल हो, जो इंडिया कोशिश कर रहा है, कई जगह पे उन्हें मिला है, तो वो एक आइडिया है, ब्रेनस्टॉर्मिंग है। या हम अपने हिसाब से कहीं इलेक्ट्रिसिटी की जनरेशन को बढ़ा सकें, या हम अपने प्लांट्स में खुद से कुछ गैसेस को बना सकें, जैसे बायोगैस, इंडिया ने खुद उसको थोड़ा सा उस पर बहुत ज्यादा वर्क किया है, जो आपके पीएनजी लाइंस जो आपके यहाँ आ रखी है आईजीएल की, ये सब बायोगैसेस ही है। ठीक है? उसके बाद कॉन्सेप्ट को डेवलप कीजिए, यानी कि रिफाइन कीजिए आइडिया को फिजिबल कॉन्सेप्ट्स में, एंड देन आप उसका प्रोटोटाइप क्रिएट कीजिए, दैट टेस्ट द मॉडल टू एवेलुएट द फंक्शनैलिटी बेसिकली। ठीक है? एंड देन you just testing in feedback that assessing the validity and the market necessary improvement, फिर टेस्ट कीजिए कि क्या क्या इंप्रूवमेंट उसमें हो सकती है, और फाइनली उसको कमर्शलाइज और लॉन्च कर दीजिए फाइनल प्रोडक्ट के लिए मार्केट और सर्विस में। क्लियर? गॉट द पॉइंट?
Yes, sir. Then so now we are moving on, and then the next is the innovation strategy. स्ट्रेटजी में सबसे पहले द प्रोएक्टिवनेस इनोवेशन होना चाहिए. यू जस्ट नीड टू एंटिसिपेट द फ्यूचर नीड. खुद की जनरेट करना चालू कर दिया था, प्रोडक्शन प्लांट को इंक्रीज करना चालू कर दिया था. यस और नो? यस सर. तो ये होती है प्रोएक्टिव इनोवेशन, यानी कि आपने पहले से एनालाइज किया, बाद में तो सभी कर लेंगे जब एक टाइम आ जाए. ठीक है. उसके बाद रिएक्टिव इनोवेशन, मतलब जब आपने रेस्पॉन्ड किया उस चेंज को जो मार्केट में, कंडीशन में, कॉम्पिटिटर्स में, और आपकी जो पॉपुलेशन है उन्होंने भी, जैसे कि अगर हमारे यहाँ की पॉपुलेशन ज्यादा से ज्यादा अगर उसको यूज करना चालू कर दे, इलेक्ट्रिक कार्स को एंड ऑल दैट स्टफ, तो फिर ठीक है. नाउ तो वो आपका रिएक्टिव हो गया. नेक्स्ट है ओपन इनोवेशन, दैट्स अ लीवरेज एंड एक्सटर्नल आइडियाज एंड देन टेक्नोलॉजीज एंड कोलैबोरेशंस. तो यानी कि आप अपने फिर लीवरेज लीजिए एक्सटर्नल आइडियाज या कुछ चेंजेस उसमें विद द टाइम जो आपके आ रहे हैं वो लीजिए. And then finally, the disruptive innovation that create the entirely new market segment like a digital streaming and replacing DVDs. तो जैसे कि पहले क्या होता था, जब पुराने टाइम में कैसेट्स चलती थी, फिर डीवीडीज आई, फिर पेन ड्राइव्स आ गई, अब क्लाउड पे बात आ गई है, क्लाउड पे डेटा होता है. ठीक है. और अब ओटीटीज आ गए जहाँ पे आप सीधा सब क्लाउड पे ही होता है, यू जस्ट नीड टू डू दैट. ठीक है. तो दिस इज व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट पॉइंट. ठीक है. नाउ द नेक्स्ट इज role of research in innovation. We are talking about that. तो मतलब अब मैं बार बार बोल रहा हूं कि एवरी एजुकेशन सिस्टम में यूजीसी ने खुद इस चीज को सपोर्ट किया है जो सबसे बड़ी एजुकेशनल बॉडी है इंडिया की. और बाकी हर जगह हम कंट्री में देख रहे हैं जहाँ रिसर्च जो है वो इनोवेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि रिसर्च बेसिकली प्रोवाइड करती है फाउंडेशन जहाँ पे आप नए आइडियाज या टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट को समझते हैं. ठीक है. सपोर्ट करते हैं. जो बेसिक रिसर्च होती है वो आपकी एक्सप्लोर करती है फंडामेंटल प्रिंसिपल्स को, जबकि आप अप्लाइड रिसर्च में आप रियल लाइफ एप्लीकेशंस को देखते हैं. ठीक है. जैसे अगर हम इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो इलेक्ट्रिसिटी तो बहुत पहले से है हमारे पास, उसे हम इन्वेंट कर चुके हैं. पर उसी इलेक्ट्रिसिटी को हम यूज करते हैं अपने कुकिंग वेव्स में, उसी इलेक्ट्रिसिटी को यूज करते हैं हम अपने ट्रैवल में, उस इलेक्ट्रिसिटी को यूज करते हैं हम अपनी और रियल लाइफ सिचुएशंस में, या रियल लाइफ में जो भी हम चीजों को यूज कर रहे हैं. तो इलेक्ट्रिसिटी हम हर जगह यूज कर रहे हैं. तो इसका मतलब वो उसका एप्लीकेशन है, रियल लाइफ एप्लीकेशन. क्लियर विद दैट? अच्छा, एआई की रियल लाइफ एप्लीकेशन कौन बता सकता है मुझे? एआई तो रिसर्च कर लिया हमने, आ गया हमारे पास, पर एआई कैसे रियल लाइफ में अप्लाई हो रहा है? कैन यू टेल मी दैट? भारती, चैट जीपीटी यूज कर रहे हैं. Yes, sir. हाँ, Yes, sir. चैट जीपीटी यूज कर रहे हैं, बट और क्या हम एआई को कैसे रियल लाइफ में हम एप्लीकेशन, और बताइए क्या कर रहे हैं? जो भी सर ऑफिस का रिपीटेटिव काम है सर, वो एआई की मदद से कर सकते हैं सर. जो भी जो एचआर फाइनेंस, जैसे जो सॉफ्टवेयर है, टूल्स है, ईआरपी वगैरह है सर, तो वो भी तो एक तरह से ऑनली की, और उसमें टेक्नोलॉजी के साथ एआई यदि जोड़ देंगे तो हम लोग सर ऑफिस के काम जो भी है, जो रिपीटेटिव वर्क है, हम लोग इजीली कर सकते हैं और विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन. अच्छा.
ठीक है। ये सर ये स्टडी को स्मूथ बनाता है, जैसे परप्लेक्स हो गया, चैट जीपीटीज हो गया, और ऑल्टरनेटिव्स जो एआई टूल्स है वो भी थोड़ा सा हमारे को हेल्प आउट कर देते हैं ड्यूरिंग द स्टडी मटेरियल और उसको लर्निंग करने के लिए। और The chatbots and Siri. And sir, Amazon and Netflix से recommendations भी आती है हमें हमारी पास्ट हिस्ट्री को देखकर, वो हाँ एआई जी। के थ्रू ही होता है। देन आप देखिए कि इनोवेशन जो है यूजुअली स्टेम फ्रॉम द साइंटिफिक डिस्कवरी एंड एक्सपेरिमेंटल फाइंडिंग। फिर आप जैसे कि आप लोगों ने बताया वो रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन है। उसके बाद जब इनोवेशन हो जाती है तो वो यूजुअली स्टेम करती है साइंटिफिक डिस्कवरीज को और एक्सपेरिमेंटल फाइंडिंग्स को, और फिर हम उसे कोलैबोरेट करते हैं बिटवीन एकेडमिक एंड इंडस्ट्री, जैसे कि आज हो रहा है। जब एआई को बनाया, रिसर्च करी, आज हमने उसे पहले एकेडमिक्स में लाए और अब हम इंडस्ट्री दोनों से जोड़ दिया है, जो कि हमें उसका इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। देन टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एंड इनोवेशन जो है उसमें हमारी जो वर्ड्स है, यानी टेक्नोलॉजी बेसिकली प्रोग्रेस इनेबल न्यू फॉर्म ऑफ इनोवेशन लाइक एआई, बायोटेक, 3D प्रिंटिंग। ठीक है। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन जो रीशेप करता है इंडस्ट्री को एनहांस करने के लिए उसकी इफिशिएंसी, और ऑटोमेशन जहां पे हम मशीन लर्निंग, ऑप्टिमाइजेशन, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। अब आप देखिए आज की डेट में मशीन और एआई को यूज मिलिट्री भी यूज कर रही है। कैसे यूज कर रही है? उन्होंने अपने एआई रोबोट्स बना दिए। एआई रोबोट्स को अपने दुश्मन की इमेजेस से, डेटा से ट्रेन कर दिया है। तो जैसे ही कोई दुश्मन की चीजें उनके सामने आती है तो वो उसे देखते ही अटैक कर देते हैं, जिससे कि अब मशीन है तो इंसान का लॉस नहीं हो रहा, मशीन है तो 24/7 365 डेज एक्टिव रह सकती है, वीकनेस उसकी कुछ नहीं है। एक्सक्यूज मी। सो ऑल दीज थिंग्स आर देयर। क्लियर? समझ में आई मेरी बात? यस सर। और जितनी भी इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है वो एक बिजनेस मॉडल को क्रिएट करती है और इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी को भी क्रिएट करती है। यानी अगर आप ऐसी चीजें बनाते हैं तो लोग आपसे बाय भी करेंगे, आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ भी होगी, और आप आगे भी जैसे कि यूएस हो रहा है। यूएस अगर कोई भी नई टेक्नोलॉजी वेपन्स बना रहा है, वो बना रहा है टेक्नोलॉजी के, तो फिर लोग उसको खरीद रहे हैं अपनी सेफ्टी के लिए। ठीक है। सो अंडरस्टैंडिंग क्रिएटिविटी इज अ एबिलिटी टू जनरेशन ऑफ ओरिजिनल एड वैल्यूएबल आइडिया। यानी कि जब आप क्रिएटिव होते हैं तो कुछ नए आइडियाज को आप क्रिएट करते हैं, जो सर्व करता है एक फाउंडेशन फॉर द इनोवेशन ऑफ बाय फॉस्टरिंग द न्यू कॉन्सेप्ट्स एज वेल एज टू क्रिएट द thinking technique that basically include the brainstorming, mind mapping, and lateral thinking basically. अब क्रिएटिविटी और इनोवेशन अगर हम कंपेयर करें तो क्रिएटिविटी इन्वॉल्व करती है एक जनरेटिंग नोवेल आइडियाज को, जबकि इनोवेशन फोकस करता है इम्प्लीमेंटिंग करने पे उनको। अगर हम एग्जांपल की बात करें तो आइडिया ऑफ ऑटोनोमस व्हीकल लाइक क्रिएटिविटी वर्सेस डेवलपिंग सेल्फ डिवाइनिंग टेक्नोलॉजी, ये इनोवेशन है। क्लियर? ऑटोनोमस व्हीकल ये क्रिएटिविटी है, सेल्फ ड्राइविंग टेक्नोलॉजी ये इनोवेशन है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट राइट नाउ? यस सर। देन जो टेक्निक है फॉर एनहांसिंग द क्रिएटिविटी, दैट्स अ ब्रेनस्टॉर्मिंग of generating the multiple ideas without immediate criticism, and also the stamper a method for modifying the existing idea, जहाँ पे आप कंबाइन करते हैं, अडेप्ट करते हैं और एक अनदर उसको यूज करके आप रिवर्स कर देते हैं। और डिजाइन थिंकिंग जो है वो ह्यूमन सेंट्रिक अप्रोच है जिसमें आप सॉल्व करते हैं प्रॉब्लम को, क्रिएटिविटी को। क्लियर? तो फाइनली अगर हम बात करें, जब आप एक इनोवेशन को बिल्ड कल्चर को कर रहे हैं तो यानी कि आप एनकरेज कर रहे हैं रिस्क को लेने के लिए और एक्सपेरिमेंट करने के लिए। तो अगर आप इस होल कॉन्सेप्ट को अभी मैं देखूं तो मैं आपको एनकरेज कर रहा हूं कि आप रिस्क लीजिए, एक्सपेरिमेंट कीजिए, क्रिएट कीजिए एक नया एनवायरनमेंट जहां पे एम्प्लॉय एक फील करें सेफ, जबकि वो नए आइडियाज को शेयर कर पाए आपसे, इन्वेस्टिगेट कर पाए कंटिन्यू लर्निंग और स्किल डेवलपमेंट में, और ऑल्सो रिकॉग्नाइज कर पाए
एफर्ट्स में। जैसे कि एजुकेशन में होता है, जब मैं आपसे कुछ पूछता हूँ, जैसे मैंने अभी पूछा, भारती ने अपना व्यू दिया, राहुल ने अपना दिया, हरेंद्र ने अपनी बात कही, संतोष अपनी बात बता रहा है, तो जब आप सब लोग अपने व्यूज देते हैं तो आपको फ्री रखा है कि आप अपने ब्रेन को यूज कीजिए, आप अपनी बात कीजिए, बताइए, और फिर मैं अपने सजेशन दूंगा। वहां पे मैं ना आप 100% सही हो सकते ना मैं हो सकता हूं, हमें एक ओवरऑल कंक्लूजन पे पहुंच के एक अच्छे आइडिया को सपोर्ट करना है और ग्रो करना है टुगेदर। क्लियर? यस सर। अब केस स्टडीज, जो अगर हम सक्सेसफुल इनोवेशंस की बात करें तो वहां पे एप्पल की रिवॉल्यूशनाइज पर्सनल कंप्यूटिंग स्मार्टफोन डिजिटल डिवाइस की केस स्टडी है, टेस्ला की केस स्टडी है, अमेजोन की केस स्टडी है। तो अब मैं एक केस स्टडीज करने के लिए मैं जस्ट स्विच करता हूं अपनी तो उस पीपीटी पे, so that we can discuss first of all the Apple case. आपको दिख पा रहा है केस स्टडी एप्पल्स आईफोन लॉन्च? यस और नो? यस सर। यस यस सर, दिख सर। रहा। चलिए तो हम इसको डिस्कस करते हैं। अब देखिए, बिफोर 2007 the mobile phone market was dominated by established player like Nokia, Motorola, BlackBerry Limited. These devices are primarily focused on calling, texting, and basic interruption function. And the market was ripe for disruption and was limited integration between the communication, entertainment, and the computing capabilities. Now, the game changer in 2007, basically, the Steve Jobs has introduced the first iPhone, which was completely transformed the mobile phone industry. And the product was not just a phone; it was a revolutionary combination of the combination entertainment, internet access, and an application ecosystem. And this launch became one of the most celebrated example of technology-driven innovation and the successful new product management in the business history. Clear? यस सर। Then what are the market gaps that identify the Apple? जब Apple ने आया इस चीज को लेके तो उन्होंने क्या मार्केट गैप को आइडेंटिफाई किया था, यानी कि उन्होंने कब सोचा था, कैसे सोचा था, उसके बाद दे एक्चुअली कम अप विद दिस आइडिया। सो दैट वाज अ पुअर यूजर इंटरफेस। मतलब जब तक आईफोन मार्केट में नहीं आया था 2007 तक, तब तक जो एग्जिस्टिंग फोन थे वो बहुत ज्यादा क्लंकी थे, अनइंट्यूटिव थे, नेविगेशन सिस्टम बहुत बेकार था, फ्रस्ट्रेटेड था यूजर उनसे। बहुत ज्यादा इंटरनेट का जो एक्सपीरियंस था वीक था। द ब्राउजिंग ऑन द मोबाइल फोन वाज स्लो, लिमिटेड एंड फ्रस्ट्रेटिंग फॉर द यूजर्स। लिमिटेड मल्टीमीडिया इंटीग्रेशंस था, म्यूजिक मल्टीमीडिया फीचर्स बहुत सेपरेट जो फ्रॉम कोर फोन फंक्शंस थे। सेपरेटेड एप्लीकेशंस थी, बिजनेस की और पर्सनल एप्स की, जो डिस्ट्रिक्ट थी विद नो यूनिफाइड इकोसिस्टम। और अंडर यूटिलाइजेशन टच स्क्रीन थी टेक्नोलॉजी की, जो एग्जिस्ट थी लेकिन वाज नॉट फुल्ली लीवरेज इन द मोबाइल डिवाइस। सो नाउ यू अंडरस्टैंड किस तरीके से आपका एप्पल ने उस चीज को आइडेंटिफाई किया और अपने सिस्टम में इन्वॉल्व किया। यस और नो? यस सर। अंडरस्टैंड? ओके। देन टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन किस तरीके से एप्पल ने की। एप्पल इंटीग्रेट मल्टीपल कटिंग एज टेक्नोलॉजी टू क्रिएट द रेडिकल इनोवेशन। द कैपेसिटिव टच स्क्रीन दी उन्होंने, iOS प्लेटफॉर्म दिया, कैपेसिटिव से उन्हें प्रिसाइज और मल्टी टच इंटरफेसेस दिए। iOS प्लेटफॉर्म ने डेडिकेट किया मोबाइल के ऑपरेटिंग सिस्टम को। वेब ब्राउजर जो कि फुल्ली इंटरनेट ब्राउजिंग कैपेबिलिटी थी वो दिया। ऐप इकोसिस्टम जो कि थर्ड पार्टी एप्लीकेशन मार्केट प्लेस था, जहां से आप ऐप डाउनलोड कर सकते थे। कैमरा टेक्नोलॉजी इंटीग्रेटेड हाई क्वालिटी कैमरास दिए। iTunes इंटीग्रेशन दिया जहां पे आप सीमलेस म्यूजिक और मीडिया को एक्सेस कर पाए। और एक क्लाउड सिंक्रोनाइजेशन भी दिया जहां पे आप वायरलेस डेटा सिंक्रोनाइजेशन कर पाए। ये सारे उन्होंने फीचर्स उसमें एड ऑन कर दिए बाय सीइंग द प्रीवियस लैकुना, जो मैं अभी प्रीवियस स्लाइड में आपको दिखा रहा था। क्लियर? यस सर। देन न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस जब उनका स्टार्ट हुआ, नंबर 1 आइडिया जनरेशन that observe the customer pain point and the market trend, that the concept of unified devices combining phone, internet और music player. Second is the idea screening, जिन्होंने जहाँ evaluate किया technical feasibility को, market demand को, competitive
एडवांटेज एंड पोटेंशियल को। थर्ड, उन्होंने कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट किया, जहां पे उन्होंने डिजाइन किया अराउंड इजी इंटरफेस, टच कंट्रोल, स्टाइलिश डिजाइन, प्रीमियम ब्रांड पोजिशनिंग। फोर्थ, उन्होंने प्रोडक्ट को डेवलप किया, जहां पे R&D टीम वर्क्स ने बहुत सॉफ्टवेयर हार्डवेयर इंटीग्रेशन, UX और UI डिजाइन पे एक्सटेंसिव टेस्टिंग की। फाइनली उन्होंने टेस्ट मार्केटिंग की, जहां पे लिमिटेड लॉन्च इन USA विद सेलेक्ट टेलीकॉम पार्टनर टू गैदर इनिशियल फीडबैक, एंड देन फाइनली कमर्शियल लॉन्च किया, जहां पे मास लॉन्च विद अ पावरफुल मार्केटिंग कैंपेन एंड स्ट्रेटेजिक ब्रांड कम्युनिकेशन। क्लियर? समझ में आ गया किस तरीके से ये आपके न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस का पार्ट बना? यस और नो? नाउ यू गाइस कैन कनेक्टेड विद दिस रियल लाइफ एग्जांपल कि किस तरीके से ये सब्जेक्ट और ये टॉपिक हम कनेक्ट कर रहे हैं रियल लाइफ में, और कैसे कंपनीज इसको यूज कर रही हैं, और कैसे एज अ मैनेजर अगर आप इन फ्यूचर यूज कर सकते हैं। यस और नो भारती, राहुल, हरिंदर, तुषार? यस सर, यस सर। हाँ जी, Okay. हाँ जी सर। नाउ प्रोडक्ट डेवलपमेंट जो क्रिटिकल स्टेज पे था, लाइक व्हाई इट वाज अ मोस्ट क्रिटिकल, क्योंकि प्रोडक्ट डेवलपमेंट स्टेज वाज द मोस्ट क्रिटिकल फॉर द एप्पल सक्सेस। दिस स्टेज इन्वॉल्व द एक्सटेंसिव R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट and software engineering, and also involve innovative interface design as well as hardware integration and testing, and then flawless technology integrations. So the entire process जो था product success depend on the perfect execution at this stage. Then transformative business impact like industry revolution, यानी कि completely transform traditional mobile phone industry. App economy, it create an entirely new application economy and developer ecosystem. ठीक है? Then market leadership, that significance increase Apple's market share and competitive position, and expectation shift, that's fundamental change the customer expectation for the mobile device. So the iPhone become one of the most successful product globally, making Apple one of the more India's valuable company. Clear? Got the point? यस सर, यस सर। Now what are the key lessons for a manager, यानी कि जैसे आप फ्यूचर मैनेजर से सबके सब, तो क्या हम की लेसन्स इस केस से सीख सकते हैं? सबसे पहले कस्टमर सेंट्रिक, यानी कि फोकस ऑन सॉल्विंग रियल कस्टमर पेन पॉइंट। कस्टमर के रियल पेन को समझिए और सॉल्व कीजिए। जो आज की डेट में इंडिया का कस्टमर का सबसे बड़ा पेन है तेल, एवरेज, डिपेंडेंस, इजीली CNG भी आ गई पर लोग लाइन में लगे हुए हैं, अब गैस भी नहीं है, तो पेन को समझिए। टेक्नोलॉजी ड्रिवन, यूज टेक्नोलॉजी एज एन इनोवेशन ड्राइवर, टेक्नोलॉजी को एक इनोवेशन ड्राइवर की तरह यूज कीजिए। रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे इन्वेस्ट कीजिए, मतलब इन्वेस्ट हैविली इन R&D। एप्पल सबसे ज्यादा अपने R&D पे इन्वेस्ट करता है। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, यानी कि मैनेज द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल केयरफुली, प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल को केयरफुली मैनेज कीजिए कि कब तक वो प्रोडक्ट चलेगा और कब उसका नया वर्जन लाना जरूरी है विद नए फीचर्स के साथ, जो एप्पल ने बहुत अच्छे से किया है कुछ सालों में, जब से वो आए हैं 7 से लेके अब तक। डिफरेंशिएशन, जो क्रिएट अ मीनिंगफुल प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, जब आप डिफरेंट अपने आप को दिखा रहे हैं तो आप क्लियरली बताएं कि आप लोगों से कहां पर अलग हैं, क्यों आपका प्रोडक्ट लोगों के प्रोडक्ट से बेहतर। क्लियर? समझ में आ गया? यस यस सर। सर, यस सर। यस सर। तो अगर हम क्वेश्चन अब यहाँ से डिस्कस करें, और मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता भी हूं, तो टेक्नोलॉजी पुश और मार्केट पुल, was Apple's innovation driven by the technology capability or market demand? बताइए क्वेश्चन, कैन दे गिव मी आंसर? क्या एप्पल का इनोवेशन जो वो टेक्नोलॉजी कैपेबिलिटी या मार्केट की डिमांड है? बताइए। थी बेसिकली बहुत है। हाँ सर, ये टेक्नोलॉजी कैपेबिलिटी और मार्केट का डिमांड तो सर के अनुसार ही तो एप्पल ने अपने आप को मार्केट में और वर्ल्ड वाइड अपने प्रोडक्ट को सेल किया सर।
और ब्रांड की ब्रांडिंग इंपॉर्टेंस, हाउ क्रिटिकल वाज द एप्पल ब्रांड पोजिशनिंग इन द प्रोडक्ट सक्सेस? कितनी क्रिटिकल थी? भारती? क्रिटिकल तो था ना सर, क्योंकि उसको एक मार्केट बेस बनाना था, क्योंकि न्यू प्रोडक्ट लेके आया था, तो डेफिनेटली इट वाज क्रिटिकल इन इनिशियल स्टेज, इट वाज क्रिटिकल फॉर देम टू मेक द ब्रांडिंग। भारती, what सर the उसने commitments you wanted सर to add? उसने जैसे जैसे उसने सर 2007 से टू टिल 2026 तक काफी कुछ मेजर चेंजेस करे टू द प्रोडक्ट को सक्सेस बनाने के लिए। Okay. Competitive imitation. Can competitors easily replicate such complex innovation? Tushar? Tushar, are you there? Mansi? No sir, imitation is not possible because sir वो differentiation है एप्पल के products में। So and privacy बहुत ज्यादा है, security देते हैं वो, तो imitation is not possible. Customer का जो experience है, what the role did the customer experience play in the iPhone market dominance? अब संतोष आप बताइए। Customer feedback is quite important in this case. If customers are giving the positive feedback, definitely it is good for the Apple. If customer feedback is bad about the product, then definitely it will impact on their marketing. So since Apple is very highly secure phone, that's why it always survived better in the market, and their market share is continuously increased. Okay. Now, this case is effectively covered the technology management, innovation strategy, new product management development, product life cycle, and strategic marketing concept. Yes or no? No. Yes, sir. Yes Yes sir. sir। Okay. So now I'll come back to my PPT quickly. So I think you understood this case. I've already discussed this. Okay. We'll also now come forward and then future of innovation की अब हम बात करते हैं। तो फ्यूचर ऑफ इनोवेशन जब हम बात कर रहे हैं तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ड्रिवन ऑटोमेटिक एंड डिसीजन मेकिंग, ये फ्यूचर है इनोवेशन का। बायोटेक्नोलॉजी जब हम बात करते हैं एडवांसमेंट ऑफ पर्सनलाइज्ड मेडिसिन एंड जेनेटिक इंजीनियरिंग। सस्टेनेबल इनोवेशन जहां हम ग्रीन टेक्नोलॉजी और बिफोर फ्यूचर की बात, बेटर फ्यूचर की बात करते हैं, ग्रीन सप्लाई चेन और ऑल हर जगह बात कर रहे हैं। जैसा कि दिवाली के टाइम पे हम हमेशा देखते हैं कितना पॉल्यूशन हो गया, एयर क्वालिटी हो गई, ये हो गया, वो हो गया। तो जब तक हम ग्रीन की तरफ नहीं बढ़ेंगे तो फिर हम इसको हैंडल नहीं कर पाएंगे। स्पेस एक्सप्लोरेशन इनोवेशन की हम कमर्शियल स्पेस और ट्रैवल एंड मास की बात करते हैं। तो ये सब आपके फ्यूचर है इनोवेशंस के। तो फाइनली इफ आई कंक्लूड दिस पर्टिकुलर टॉपिक इज दैट इनोवेशन ड्राइव प्रोग्रेस, competitiveness, social development, understanding the key driver source and the process enhancement, creativity, research, technology and building blocks, and a culture continue learning ability foster innovation. Clear? Yes sir। Now, it is done from my side. Now I'll quickly switch to your SLM so that I can quickly discuss that also, and when we can complete this session on the unit 1. सर एक चीज थी कि आप इस बार मतलब ऑफलाइन क्लास लेओगे? अभी भारती मैं अभी पता नहीं है अभी ऑफलाइन का, बिकॉज मैं एम ऑलरेडी ऑक्यूपाइड इन लॉट ऑफ थिंग्स, बट श्योर ये मैंने सोचा है कि मैं 1 या 2 क्लास जरूर आऊंगा। ओके। 2 नहीं तो 1 बिकॉज ऐसे आऊंगा, मतलब किसी ना किसी वीक में।
जी तो वो मैं आऊंगा, आई ट्राई, ठीक है। बट ओके सर अभी एग्जैक्टली कौन सा वीक होगा वो नहीं पता, वो तो आपके पास आ ही जाएगा टाइम टेबल, ठीक है। ओके तो सर बट ओके आई हैव डिसाइडेड बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स, आई एम ऑलरेडी ऑक्यूपाइड विद दिस, बस वही चीज है और कोई रीजन नहीं है, ठीक है। क्योंकि सर हाँ। मैंने आपकी लास्ट क्लासेस ली थी सेकंड सेम में डिसीजन मॉडलिंग, उसमें भी मेरे को काफी कुछ आपसे अच्छा लर्न करने को मिला था, इवन संत सर से भी, इवन आपसे भी। हाँ, थैंक यू सो मच भारती। आई ट्राई माई लेवल बेस्ट कि इस टाइम में मैं आपको इस तरीके से सब्जेक्ट पढ़ा सकूं कि आपको दोबारा देखिए, व्हाट आई माय ऑब्जेक्टिव इज टू गिविंग यू द लेक्चर्स कि व्हेन आई गिविंग माय लेक्चर्स, तो उसमें दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट रहती हैं मैं अपने लेक्चर में, कि आज जो चल रहा है मार्केट में मैं उस यस सर रियल लाइफ सिनेरियो को ला पाऊं। सेकेंडली, आपको इस तरीके से मैं पढ़ाऊं कि आपको रटने की जरूरत नहीं पड़े, या आप अगर जब एग्जाम में बैठे हो तो यू कैन राइट योर ओन आंसर, यू कैन राइट योर ओन थिंकिंग इन्वॉल्व इन दैट। यही एक मैनेजर का रोल होता है। मैनेजर इज नॉट एमपीए डिग्री, इज नॉट लाइक दैट कि जहाँ पे आप रट रहे हैं और बस बोले जा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। आपको रियल लाइफ सिचुएशन को एनालाइज करना है, उन्हीं को अपने केसेस में लाना है, उन्हीं में से प्रॉब्लम ढूंढनी है। अब न्यू प्रोडक्ट की बात करते हैं, तो अगर हम आज की सिचुएशन में समझ के न्यू प्रोडक्ट नहीं बना पा रहे तो फिर क्या फायदा हमारा आज की डेट में इसको पढ़ने का। ओके सर दिस इज व्हाट वी ऑल ट्राई टू डू, मतलब हमेशा हमें करना चाहिए इन ईच एंड एवरी सब्जेक्ट ऑफ एमबीए। वो बिल्ड ही ऐसा है, कोर्स ही ऐसा है ये, ठीक है। तो जी सर चलिए, अब आई जस्ट कम बैक टू द एसएलएम, आई थिंक आपको शो हो रहा होगा अब आपका। यस सर तो Yes, yes. अब मैं फर्स्ट ऑफ ऑल जो हम यूनिट 1 की बात करें, जहाँ पे हम इंट्रोडक्टरी की बात करें, जैसे कि हमने भी आज इंट्रोड्यूस किया है आपको फर्स्ट यूनिट को, तो आई जस्ट कम टू दैट कि भाई मैंने जो कवर अप किया है, बिकॉज वी हैव 8 यूनिट्स इन दैट। पीपीटीज भी आपको 8 ही दूंगा, केस स्टडीज की भी अलग से मैं दूंगा, अभी जो मैंने डिस्कस किया इस पीपी वो भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ग्रुप आई थिंक मानसी ने क्रिएट किया है, आई हैव सीन, उसमें कुछ इशू मुझे दिख रहा है, बार बार बोल रहा है मुझसे, पता नहीं। एक सेकेंड, अभी तो डिलीट हो गया है, मुझे कुछ वो करना पड़ेगा, मुझे शायद ज्वाइन करना पड़ेगा। मैं भी ग्रुप ज्वाइन करता हूँ, आई थिंक आप सब लोग भी वो ज्वाइन कर लीजिए ग्रुप, ऑपरेशन इनोवेशन टेक्नोलॉजी, आप सब हैं उस पर, मानसी मुझे दिख रही है और लोग, ठीक है। सो प्लीज ऐड, कम ऑन दैट ग्रुप। मानसी विल प्रोवाइड यू द लिंक, मानसी तो प्लीज मैंने प्रोवाइड चैट द बॉक्स लिंक। तो हाँ मैंने जी, हाँ चैट जी, बॉक्स में डाल दिया है लिंक। ओके ओके, भारती, राहुल, सभी लोग जो यहाँ पर हैं, प्लीज ज्वाइन दैट ग्रुप। मैं अभी जो भी पीपीटी अभी कराई है, प्लस जो मेरे नोट्स हैं या केस स्टडीज, मैं वहीं पे शेयर करूंगा। अभी मैं फटाफट से सर एसएलएम ऑलरेडी को आई ज्वाइन अच्छा सर अच्छा, ठीक। तो मैं अभी सेशन के बाद वहाँ पे शेयर, पहले यूनिट 1 है, ठीक है। दिस इज ऑलरेडी बाई चांस क्रिएटेड बाय मी ओनली, ठीक है। ये आपको मेरा ही नेम दिख रहा है, मैंने ही ये यूनिट डेवलप की है पूरी, ठीक है। तो ऑब्वियसली मैंने किया, तो मैंने ये सारी चीज़ें अभी आपको बताई भी हैं, तो वही सब चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं कि आप अंडरस्टैंड कर रहे हैं क्या है इनोवेशन, किस तरीके से, देखिए टाइम के साथ करंट टेक्नोलॉजी, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी कैसे आती है, ग्रोथ होती है। ये टेक्नोलॉजी इनोवेशन चार्ट आप देख रहे हैं इसमें, लेवल ऑफ इनोवेशन जहाँ मैंने इंक्रीमेंट, सस्टेनेबल, ये सब मैंने आपको डिटेल में पीपीटी में बात की है। प्रोडक्ट इनोवेशन, प्रोसेस इनोवेशन, बिजनेस मॉडल, यस और नो, यस सर सर्विस इनोवेशन, सोशल, तो ये सब वहाँ डिटेल में लिखा हुआ है। वही सब मैंने पीपीटी में आपको अपने दिखाया है। की ड्राइवर्स में देखिए एआई, आईओटी, बायोटेक्नोलॉजी, रिन्यूएबल, ब्लॉकचेन, ये सब मैंने बात की है। मार्केट डायनामिक्स की बात की है, सप्लाई डिमांड, कम्पिटिटर्स, टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट, सोशल फैक्टर्स एंड ऑल, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर्स, ये सब हमने बात की। ह्यूमन रिसोर्स में किस तरीके से एचआर में भी न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट हो रहा है, किस तरीके से वो यूज कर रहे हैं, कैसे इकोनॉमिक मोटिवेशन, कहाँ सोर्स ऑफ इनोवेशन, जो भी हमने बात की, क्या क्या सोर्सेज है इनोवेशन के, ठीक है। रिलेशनशिप क्या है इनोवेशन और रिसर्च एंड डेवलपमेंट की, किस तरीके से आप करते हैं, ठीक है। और केस स्टडीज जो मैंने बात की, इसमें ऑलरेडी केस दिए हुए हैं, ये पूरी पूरी केस स्टडी दी हुई है, उसके बेसिस पे सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो आई थिंक आई एम डन विद यूनिट 1।
So if you guys want, so I can done coming up with the unit 2 as well right now. या आपको नेक्स्ट सेशन में करना है या अभी करना है, you just can tell me so that we can start with that. कंटिन्यू कर सकते हैं नेक्स्ट। या कुछ और केस स्टडीज आप डिस्कस करना चाहते हैं तो आई कैन डिस्कस विद दैट। जैसे मैंने अभी बात करी आपको टेस्ला वाली केस स्टडी, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एंड कंटिन्यू इनोवेशन। तो टेस्ला ने क्या किया कि डिस्ट्रीब्यूट किया कि ऑटोमेटिक इंडस्ट्री को बाय इंट्रोड्यूसिंग हाई परफॉर्मेंस इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लाइक मॉडल एस एंड मॉडल 3, जहाँ पे इनोवेशन है बैटरी टेक्नोलॉजीज, ऑटोनॉमस ड्राइविंग, ओवर द एयर सॉफ्टवेयर अपडेट्स, सुपर चार्जर नेटवर्क्स। ठीक है। अब न्यू प्रोडक्ट स्ट्रैटेजी जहां पर है कि डायरेक्ट टू द कंज्यूमर सेल, इकोसिस्टम अप्रोच और बिजनेस इम्पैक्ट। अगर मैं क्वेश्चन पूछूं कि व्हाट टाइप ऑफ इनोवेशन इज टेस्ला नोन फॉर, तो टेस्ला रिप्रेजेंट द डिस्ट्रप्टिव इनोवेशन दैट रीडिफाइनिंग द ट्रेडिशनल ऑटोमोबाइल्स यूजिंग सॉफ्टवेयर एंड क्लीन एनर्जी। हाउ डज द टेस्ला प्रोडक्ट मैनेजमेंट डिफर फ्रॉम द ट्रेडिशनल कार कंपनी? Tesla user continue product updates instead of the static product delivery and making car evolve over time. टेस्ला क्या है, वो अपडेट करती रहती है, बैटरी में अपडेट करती है, टेक्नोलॉजी में अपडेट करती है। व्हाट इज द Excuse me, बिगेस्ट sir. टेक्नोलॉजी एडवांटेज ऑफ टेस्ला? Okay. हाँ जी। The case study is not visible. नहीं, केस स्टडी विजिबल नहीं है, मैं आपको जस्ट बता रहा हूँ टेस्ला का। Okay, वो sir. जो आई हैव शेयर्ड विद द पीपीटी, मैं अभी अपनी पीपीटी में मैंने शायद लिखा हुआ था, ये देखिए, ये लिखा ना टेस्ला, दिख रहा है? Yes, sir. हाँ, मैं इसी की बात कर रहा हूँ, एप्पल Yes, की sir. तो मैं आपको कर रहा हूँ, मैं टेस्ला की बात कर रहा हूँ। किस तरीके से टेस्ला की जो मैं केस स्टडी की बात कर रहा हूँ कि भाई क्वेश्चंस मैं आपको ऑलरेडी बता रहा हूँ कि अगर हम बात करें तो क्या बिगेस्ट टेक्नोलॉजी एडवांटेज है टेस्ला की, ये है कि इंटीग्रेशन ऑफ सॉफ्टवेयर टेस्ला यूज करता है, बैटरी की टेक्नोलॉजी को यूज करता है और एआई ड्रिवन फीचर्स भी डालता है। इसीलिए वो ये न्यू प्रोडक्ट की तरीके से उसमें हम देख सकते हैं। व्हाट रिस्क द टेस्ला फेस, रिस्क क्या लेता है? हाई कैपिटल इन्वेस्टमेंट करता है, मार्केट में स्केप्टिज्म होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर चैलेंजेस होते हैं। ठीक है। और मैनेजरियल लेसन की अगर हम बात करेंगे टेस्ला की केस स्टडी से, जो सेकंड आपको शो हो रही है, दैट्स अ थिंग बियॉन्ड द प्रोडक्ट, बिल्ड अ कंप्लीट इकोसिस्टम। मतलब जो चल रहा है ना नॉर्मल लाइफस्टाइल में, उससे अलग आप सोचिए और एक अलग इकोसिस्टम को बिल्ड कीजिए। क्लियर? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? Yes, sir. Yes, sir. अब तीसरी केस स्टडी जो आपको देखने को मिल रही है वो Amazon Yes, sir. डिस्ट्रप्टिव रिटेल विद ई कॉमर्स एंड क्लाउड कंप्यूटिंग इनोवेशन। अब उसमें क्या होता है कि Amazon ने इंट्रोड्यूस किया, अगर आपको अवेयर हो, किंडल ई रीडर। यस और नो? Amazon Yes, ने sir. हाँ जी सर। किंडल ई रीडर, जहाँ पे आप पीडीएफ वगैरह पढ़ते हो, वो किया, जो ट्रांसफॉर्म करता है पब्लिशिंग इंडस्ट्री को। मतलब इनोवेशन में उन्होंने फोकस किया, उन्होंने कहा डिजिटल रीडिंग प्लेटफॉर्म बनाइए, क्लाउड स्टोरेज करी, वायरलेस बुक डिलीवरी करी, इंटीग्रेशन Amazon इकोसिस्टम को किया। ये उनका इनोवेशन है यहाँ पे। अब नया प्रोडक्ट स्ट्रेटजी क्या है यहाँ पे कि लो कॉस्ट डिवाइस की एक उन्होंने बना दी स्ट्रेटजी, रिवेन्यू अपने डिजिटल बुक कंटेंट से बना दिया, कस्टमर सेंट्रिक अलाइनमेंट दे दी। अब बिजनेस इंपैक्ट क्या हुआ इसका? बिजनेस इंपैक्ट हुआ कि भाई इन्होंने डिस्ट्रप्टिव ट्रेडिशनल पब्लिशिंग क्रिएट अ ई बुक मार्केट एंड स्ट्रेंथन Amazon इकोसिस्टम। अगर यहाँ पे हम क्वेश्चन की बात करें तो व्हाट टाइप ऑफ इनोवेशन इज किंडल? क्या कोई बता सकता है कि किंडल किस तरीके का इनोवेशन है? किंडल में सर सारे बुक का सॉफ्ट कॉपी स्कैन करके आप कोई बुक परचेज करके या कुछ बुक फ्री है उसको पढ़ सकते हैं सर, कुछ परचेज भी कर सकते हैं। तो इसका जो आंसर हो सकता है वो ये है कि डिस्ट्रप्टिव इनोवेशन इन पब्लिशिंग एंड रीडिंग हैबिट्स। यस और नो? Yes, sir. यस Yes, sir. अब मैं अगर आपसे सेकंड क्वेश्चन sir. करूं कि व्हाई वाज किंडल सक्सेसफुल, क्यों था सक्सेसफुल किंडल? सर उसने अपना जो बुक है वो एक मतलब पर्सन को एज अ कस्टमर को बहुत शॉर्ट टाइम में प्रोवाइड करना शुरू करा था एज अमेजोन ने, कि जैसे हम बाहर इधर उधर जाते हैं लेने नहीं मिलती, तो वही कंटेंट क्रिएट करके उसने अमेजोन में दे दिया एज अ किंडल के नाम से। यानी कि आपका मतलब है कन्वीनियंस। यस सर। और सेकंड आपका जो मतलब जाता है वो आता है पोर्टेबिलिटी। यस सर।
और थर्ड जो पॉइंट हम यहाँ से देख सकते हैं कि क्यों किंडल सक्सेसफुल है, वो है इंस्टेंट एक्सेस टू बुक्स। जो तीनों आपने बातें करी, मैंने तीनों बातों को वन वर्ड में बोला, कन्वीनियंस, पोर्टेबिलिटी, इंस्टेंट एक्सेस टू बुक्स। यस और यस नो? सर, यस सर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट रोल डिड टेक्नोलॉजी प्ले? बताइए, इसमें क्या रोल टेक्नोलॉजी ने प्ले किया है? टेक्नोलॉजी के यूज करके सब इजी बुक मतलब गेन कर रहे हैं, मतलब ले रहे हैं बुक और फिजिकली कॉपी हमें जरूरत नहीं है। इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन हो रहा है क्योंकि फिजिकल बुक से पेपर से छापने में सर इन्वायरमेंट का भी जो भी जैसे भी बनता है पेपर सर, इन्वायरमेंट के ट्री कटिंग से बनता है सर, तो वो भी हम सर इन्वायरमेंट वो होगा, इन्वायरमेंट पे ज्यादा हार्म नहीं होगा। तो टेक्नोलॉजी इनेबल्ड टेक्नोलॉजी सर इसका आईटी मतलब सेक्टर, बताइए बताइए बताइए। आईटी सेक्टर्स जो इंटरनेट है राइट नाउ, उसका यूटिलाइजेशन हुआ है। मोबाइल्स की ऑलरेडी प्रेजेंस है बहुत ज्यादा मास पॉपुलेशंस पे, तो अगर ये सब बेस ऑलरेडी है, दैट्स व्हाई दे आर अमेज़न इज एबल टू यूटिलाइज दैट वन। अगर ये इंटरनेट बेस नहीं अगर होता, मोबाइल्स की प्रेजेंस इतनी ज्यादा नहीं होती, तो माइट बी वो जो उनका बिजनेस मॉडल है फेल हो जाता। तो दैट्स व्हाई टेक्नोलॉजी इज मोर इम्पोर्टेंट इन दिस बिजनेस सिनेरियो, जो उन्होंने ये किंडल पे ठीक है, इसका मतलब टेक्नोलॉजी ने इनेबल किया डिजिटल डिस्ट्रप्शन एंड क्लाउड बेस्ड रीडिंग। यस और नो? यस सर। यस सर। अब इसमें हमें एक क्वेश्चन है कि व्हाट वाज Amazon's प्राइसिंग स्ट्रेटेजी? वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। मैं आपसे क्वेश्चन है कि व्हाट वाज Amazon's प्राइसिंग स्ट्रेटेजी? बताइए। देखिए, इसमें मैं बताता हूँ कि डेफिनेटली जो Amazon बुक की जो जो प्राइसिंग फिजिकल कॉपी की स्ट्रेटेजी, प्राइस होगी, हाँ जी बताइए बताइए, प्राइसिंग बुक्स स्ट्रेटेजी बताइए। प्राइस फिजिकल बुक्स की तो इसमें जो Amazon की आज प्राइसिंग जो स्ट्रेटेजी, मार्केट आई में जस्ट फिजिकल टेल बुक की यू। प्राइस है, हाँ संतोष, ठीक है। वो डेफिनेटली डेफिनेटली compete करना था, तो डेफिनेटली उनका जो प्राइस स्ट्रेटेजी होगा उससे कहीं ना 20% 30% लेसर प्राइस पे अवेलेबल करा रहे होंगे। दैट्स व्हाई दे वुड बी एबल टू compete इन द मार्केट। तो बेसिकली संतोष कि Amazon की जो प्राइसिंग स्ट्रेटेजी है, दैट इज अ लो डिवाइस कॉस्ट फर्स्ट ऑफ ऑल, है ना? लो डिवाइस कॉस्ट है, प्लस प्रॉफिट फ्रॉम द कंटेंट बुक्स। ये इन्होंने अपनाया कि डिवाइस कॉस्ट को कम रखिए और प्रॉफिट जो कंटेंट का, बुक की कंटेंट है, उससे प्रॉफिट कमाइए। क्लियर? यस सर। देन अगर की लेसन्स की बात करूं इस केस स्टडी से, तो आपको क्या की लेसन मिला? सर यूजर का इजी अवेलेबल है सर। तो बेसिकली आपको हुआ कि फोकस ऑन कस्टमर एक्सपीरियंस, फोकस ऑन कस्टमर एक्सपीरियंस ओवर प्रोडक्ट प्रॉफिट। प्रोडक्ट प्रॉफिट से ऊपर आप कस्टमर के एक्सपीरियंस पे भी फोकस कीजिए, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी आपको कमा के देगा। क्लियर? हाँ जी सर। अब एक और केस हम इसी में डिस्कस कर लेते हैं, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मुझे लगता है, कि सैमसंग गैलेक्सी स्मार्टफोन इनोवेशन, जहां पे सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स बिकम अ ग्लोबल लीडर थ्रू इट्स गैलेक्सी स्मार्टफोन सीरीज। यस और नो? ये भी एक बहुत बड़ा हाइप है मार्केट में। जो गैलेक्सी स्मार्टफोन आया, उससे बहुत बड़ा ग्लोबल लीडर एकदम से सैमसंग मार्केट में बन गया था। यस और नो? अब फुल टेक्नोलॉजी दे दी 5G। जी क्या यूज करी उन्होंने कि रैपिड प्रोडक्ट डेवलपमेंट, प्रोडक्ट हैवी R&D करी है। बिजनेस पे इंपैक्ट कैसे हुआ?
इनोवेशन में हार्डवेयर इनोवेशन हो गया और मार्केटिंग हो गया। तो अगर आपसे क्वेश्चन करूं व्हाट इनोवेशन डज टेल मी क्या इनोवेशन फॉलो किया है? राहुल, संतोष, कैन यू टेल मी? Are you getting my voice? Bharti? Hello, sir. Sir, Bharti? you are not audible. I'm not audible? हेलो, अब आ रही है मानसी आवाज मेरी? Yes, sir. तो मैं ये कह रहा हूं कि जब सैमसंग ने अपना गैलेक्सी स्मार्टफोन निकाला, सो व्हाट वाज द टाइप ऑफ इनोवेशन दे एक्चुअली फॉलो? कैन यू कमेंट ऑन दैट एनीबडी? तुषार, राहुल, भारती, संतोष? Are you getting my voice? Yes, sir. बोल क्यों नहीं रहे फिर संतोष, भारती? क्या हो गया ऐसा? तो चलिए आप बताइए, मानसी आप बताइए, क्या इस तरीके का इनोवेशन हमने सैमसंग ने फॉलो किया है? कैन यू कमेंट ऑन दैट? A disruptive innovation. It basically incremental plus technology innovation. This is called incremental plus technology innovation. अब कैसे सैमसंग मैनेज करता है प्रोडक्ट वैरायटी को? बाय ऑफरिंग मल्टीपल मॉडल्स फॉर द डिफरेंट कस्टमर सेगमेंट। उन्होंने बहुत सारे मॉडल दिए अपने अपने अलग अलग कस्टमर्स को, इस तरीके से वो अपने मॉडल प्रोडक्ट की वैरायटी को मैनेज करता है। किस तरीके से सैमसंग ने अपने कंपटीटिव एडवांटेज लिया है? उसने स्ट्रॉन्ग R&D और फास्ट इनोवेशन साइकिल करी है, जिससे कि उसने अपने कंपटीटर एप्पल को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग मार्केट में वो दिया है। क्या रिस्क उनके मल्टीपल प्रोडक्ट में है कि प्रोडक्ट की कैनिबलाइजेशन और हायर कॉस्ट, ये रिस्क है कि बहुत ज्यादा महंगे फोन है। की लेसन यही है कि हम कंटिन्यूस इनोवेट करें जो कि नेसेसरी हाई इंपैक्ट हो कंपटीटिव एनालिसिस के अंदर। क्लियर? व्हाट द पॉइंट? Yes, sir. अब एक और मैं इसमें इस पर्टिकुलर टॉपिक पे एक एग्जांपल और मैं बहुत अच्छा इसमें इन्वॉल्व करना चाहूंगा एक केस स्टडी को, जो है नेटफ्लिक्स की केस स्टडी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? एवरीबडी कैन लिसन टू Yes, मी? sir. Sir. राहुल, हरिंदर, संतोष, भारती, Sir. आर यू देयर? हाँ, तो नेटफ्लिक्स को मैं इसमें बहुत इंपॉर्टेंटली ऐड करना चाहूंगा बिकॉज आज की डेट में ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत इंपॉर्टेंट आई कैन से दैट कि ये एड ऑन है कि नेटफ्लिक्स ट्रांसफॉर्म्ड एंटरटेनमेंट फ्रॉम डीवीडी रेंटल टू ऑनलाइन स्ट्रीम प्लेटफॉर्म। एक टाइम था जब हम लोग छोटे थे तो डीवीडी हम रेंट पे लेके आते थे। डीवीडी की कैसेट भी और डीवीडी प्लेयर भी दोनों ही जनरली रेंट पे, बहुत खरीदना उस टाइम पे हर किसी पे डीवीडी नहीं होता था। डीवीडी होता था तो फिर डीवीडी किराए पे लेते थे कैसेट और अपने घर पे लगा के देखते थे। अगर बहुत लोग इससे अवेयर हों तो शायद आप भी अवेयर होंगे। ये एक समय था, पर नेटफ्लिक्स ने उसी चीज को, उसी मॉडल को चेंज कर दिया ऑनलाइन स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पे। यस और नो? Yes, sir. आज की डेट में आप नेटफ्लिक्स का भी सब्सक्रिप्शन लेते हैं, वही मंथली चार्ज देते हैं जैसे वहां पैसे देके आते थे। अब तीन चीजें जो मैं बार बार अपनी हर केस स्टडी में बात करता हूं, जब मैं कोई भी केस स्टडी ले रहा हूं, एप्पल ले रहा हूं, सैमसंग ले रहा हूं या और जो भी मैंने केस स्टडीज अभी यूज करी हैं, ठीक है, टेस्ला की है, अमेजोन की है, तो मैं 3 पॉइंट बोलता हूँ, यानी कि 3 पॉइंट पे उस केस स्टडी को जज करता हूँ जो हमारे टॉपिक से रिलेटेड है। हमारे टॉपिक का नाम है इनोवेशन एंड न्यू प्रोडक्ट टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट। तो सबसे पहले हमारा इनोवेशन क्या हुआ, नेटफ्लिक्स जब ऐसा करता है तो इनोवेशन क्या हुआ इसमें, मुझे ये बताइए। एक एक करके बताइए, मानसी, तुषार, कोई भी, इनोवेशन क्या हुआ जब नेटफ्लिक्स ने ऐसा किया, तो इसमें इनोवेशन क्या है? तो नेटफ्लिक्स ने तो डिस्ट्रप्टिव इनोवेशन ही किया है। देखिए, इसमें इनोवेशन है स्ट्रीमिंग टेक्नोलॉजी फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंड इनोवेशन है एआई बेस्ड रिकमेंडेशंस जो आपको दिखाता है।
ओरिजिनल कंटेंट प्रोडक्शन, यानी खुद ऐसे भी कंटेंट है जो नेटफ्लिक्स एक्सक्लूसिव है, जो वहीं पे बनाते हैं, वहीं पे दिखाते हैं, दैट्स इट। ये इनोवेशन है। नई प्रोडक्ट स्ट्रेटजी यहाँ पर है कि इन्होंने सब्सक्रिप्शन मॉडल यूज किया है, ये नया प्रोडक्ट स्ट्रेटजी है। ग्लोबल एक्सपेंशन किया है, वर्ल्ड वाइड यूज करें, ये भी स्ट्रेटजी है। डेटा ड्रिवन कंटेंट क्रिएशन है कि डेटा, ऑब्वियसली ये सारा डेटा क्लाउड पे ही सेव है, तो कुछ ऐसा भी होता है, आप देखते हैं ना कि दिस इज लीविंग द नेटफ्लिक्स, दिस इज कमिंग टू द नेटफ्लिक्स, यस और नो। कभी कभी साइकोलॉजिकल होता है, जब आपका लिखा था ना लीविंग नेटफ्लिक्स, तो आपको लगता है देख लेता हूँ, जाने वाली है, यस और नो। यस सर। तो वो नया प्रोडक्ट स्ट्रेटजी यूज किया। बिजनेस इंपैक्ट यही है कि डिस्ट्रप्टिव टीवी एंड फिल्म इंडस्ट्री, चेंज कंज्यूमर व्यूइंग हैबिट्स एंड ग्लोबल डोमिनेंस इन स्ट्रीमिंग। तो अगर मेरा क्वेश्चन आपसे अब ये है कि व्हाट टाइप ऑफ इनोवेशन इन नेटफ्लिक्स, जो आपने बोली दिया डिस्ट्रप्टिव इनोवेशन यूज किया है मीडिया और एंटरप्राइज में। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट द रोल डज द डेटा प्ले, डेटा क्या रोल प्ले करता है यहाँ पे, बताइए। What role the data play? Data helps in personalized recommendation and content decision basically. Clear? यस सर। What is Netflix revenue model? Is the subscription based model. Revenue model कौन सा है Netflix का? Subscription based model है. What was the biggest risk in that? Transforming DVD to streaming was the biggest risk जो उन्होंने लिया है. की लेसन्स यही है कि अडेप्ट कीजिए टेक्नोलॉजी को, शिफ्ट कीजिए रिस्क ऑफ बिकमिंग ऑब्सोलीट। तो अगर मैं अब आपके साथ जो मैंने 5 केसेस शेयर किए, मैं उन 5 केसेस की ना एक जो मैंने 5 केसेस शेयर किए हैं, मैं उस 5 केसेस की एक टेबल आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर कर रहा हूँ। तो आप क्या क्विकली वो देख पाएंगे सब अपने व्हाट्सएप ग्रुप? तुषार, sir. मानसी, भारती, मुझे आवाज नहीं आ रही। संतोष, कहाँ चले गए तुम सब लोग? संतोष भी नहीं है। हेलो सर। हेलो, हाँ। यस नहीं सर। मानसी, आपकी आवाज तो आ रही है, बाकी सबकी पता नहीं कैसे गायब हो गई। चलिए, अब आपको मैंने व्हाट्सएप ग्रुप पे कुछ शेयर किया है, तो जस्ट सी दैट। तो देखिए, कंपनी जो टेस्ला, जब मैंने बात करी तो ये इन्होंने कैसा इनोवेशन यूज किया? डिस्ट्रप्टिव। की कॉन्सेप्ट है इकोसिस्टम प्लस सॉफ्टवेयर ड्रिवन प्रोडक्ट। Amazon का जब मैंने बात की तो डिस्ट्रप्टिव उन्होंने भी यूज किया, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। सैमसंग ने यूज किया इंक्रीमेंटल इनोवेटिव, कंटिन्यूस इनोवेशन कर रहे हैं। टाइसन जो डिजाइन और इंक्रीमेंटल और प्रॉब्लम सॉल्विंग करेगा, और नेटफ्लिक्स जो डिस्ट्रप्टिव प्लेटफॉर्म बेस्ड इनोवेशन। डायसन मैंने डिस्कस नहीं किया, बट डायसन में इन्होंने बेसिकली वो एक केस स्टडी, मतलब मैं जो डायसन ने बनाई है वो है आपकी वो उनमें वैक्यूम क्लीनर और बैगलेस साइक्लोन टेक्नोलॉजी यूज करी थी। क्लियर? तो आई थिंक यू अंडरस्टूड दिस कंप्लीट टॉपिक, यू अंडरस्टूड दिस ऑल द cases. So what I feel ki I should start with the second unit in the next session. That is sufficient for today. यस If सर। you guys say yes, so we can wind up the today's session and we'll meet you in the next. I share all this content PPT on your group. Yes or no? Yes, sir. I think somebody takes mic access from other students. Could you please unmute them? एक सेकेंड, अच्छा ऐसा हो रहा है। डिसेबल माइक आ रहा है इसमें तो, मेरे पास तो चेक करिए अब एक बारी। संतोष चेक करो। संतोष, कैन यू स्पीक? अनम्यूट कर सकते हो आप?
Sir, please unmute Bharti. मैंने तो कर दी, यहाँ से तो हो गया, पता नहीं। अभी भी नहीं कर पा रहे? No, sir. Sir, they are unable to unmute my. हम्म। मेरे पास से तो ये मुझे खुद ही एक्सेस नहीं देते। मैं तो जो यहाँ से तो ऑन है, मैंने करा तो। चलिए ठीक है, सेशन तो हो ही गया। विल मीट यू इन द नेक्स्ट सेशन। भारती एंड ऑल, आई थिंक आप लाइक का शो कर सकते हैं इफ यू आर एग्री कि वी कैन स्टार्ट विद अनदर टॉपिक, बिकॉज वो प्रॉपर होता है, तो हम नेक्स्ट लेक्चर में ले लेंगे। क्लियर? राहुल, तुषार, तुषार यू कैन ऑल्सो थम्स अप। बाकी भारती, राहुल, संतोष का मुझे मिल गया है, मानसी से हो ही गया है। ओके, ठीक है, ठीक है गाइज। सो नाउ we'll meet you in the next session. I'll start with the next unit. We are done with the unit 1. Thank you so much. Okay. Thank you, sir.
हेलो। हेलो, हाँ विकास जी। सर क्या रिकॉर्डिंग बंद कर दूं क्या? हाँ हाँ, अब कर दीजिए। एक्चुअली वो यूनिट 1 तो कंप्लीट हो गई, तो स्टूडेंट आर सेइंग कि सर आज के लिए इतना ही है, फिर अगले में हम नेक्स्ट ठीक यूनिट पे ठीक। चले जाएंगे। ओके, थैंक यू। ओके।